Hello everyone, this is Sanket and Aman, and we are doing Trio Victory Podcast episode 4. And today we are talking about the money. And today we have with us CA Aman Gupta. He has 6 years of CA experience and he has worked for Ernest and Young for 3 years, and now he's independently practicing in Pilibhit, and he's doing financing, he's doing GST, he's also doing income tax. So he's the guy to go to. Then we have Srijal Gupta, CS Srijal Gupta, and he's working with Chadda Group as a CS and also commercial officer. And then we have CA Sajal Agrawal, who has work experience of 4.5 years in manufacturing sectors. And if you want to know about stock market and investment, he's the guy to go to. So how are you all today? We are fine, Harshvardhan. Thank you. Yeah, fine. Hello everyone. Hello. Hello. So it's a Hello. pleasure to have you all here with us to discuss such an important topic. I want to start with Aman, and I want to start with the most fundamental and basic question: why bother? The question is basically why bother, and question is why financial education is a must, and why we should not treat it as something that like every other subject. Why it has such an importance? So over Be- to you, Aman. Before starting my views on money education, financial education, I want to welcome Aman Gupta and Sajal Srijan. Welcome to our podcast. Or I want to tell Aman Gupta was my classmate from school, and Sajal was also my batchmate, but from a different school. So it's a good thing. Like in my last podcast, Aziza was here. वो भी मेरी classmate थी. So it's a good thing हम लोग अपनी class के लोगों को बुला रहे हैं. और अभी Thank you. yeah, so financial education, why we started discussing on this. As a life coach, we were the people who used to tell everyone the advice on how to live a life in a proper manner. But money plays a very important role in life. If the money part is not up to the mark, then a person cannot live a proper life. So we have to guide people how to manage money, how to do something good about it. So this was the main reason why we thought like we will bring you all like educated guys on this who are expert on money. Aman, और voice नहीं आ रहा है तेरा. hello. अभी आ रहा है, अभी आ रहा है. हाँ, so I was saying कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये पॉडकास्ट हम इसलिए करते हैं कि we will like we know the importance of money and we'll call the people who are already doing amazing work in the finance sector, in the money market, I would say. So first question is from Sajal, आप बताओ मुझे कि why financial education, what is the role of financial education according to a CA like you? Financial everything. First of all, I want to thank to all of you to give me the opportunity to be with you and to give some knowledge about the financial management. And Aman, I am very much overwhelmed that you are doing a wonderful job and that you are Thank you, teaching man. the society and giving us the opportunity to share something about the financial management. So let's coming to the topic, financial education. Financial literacy is very much important to all of us because everything we are doing is directly or indirectly linked to the finance. And for the basic concept, financial management is to how to manage the finance, like how much we have to spend, how much we have to invest, and how much we have to earn. Just a second, like some noise is coming, like some TV is working, TV is on nearby. Actually, we are not having a TV nearby. Yes, I don't know, it's कहीं से the आवाज noise आ is रहा है not coming extra from सा, our end. noise is coming. I don't know किसके It's पास से not आ coming रहा from our end. है. Okay, चलो. Continue, Sajal. Yes. Yes, financial management. So I'm saying that how we have to manage the finance, like how much we have to spend, how much we have to invest, how where we have to invest so that we can get the adequate return. So this is all about the financial management. Every person have the must have the literacy about the financial management. Like I am not saying that every person having the theory or he have to study about the financial management, have to have the strategic financial management, but basic knowledge about the financial management everybody should know. होना चाहिए. Yeah, So true. yes, so this is about the financial management. So every person must have the literacy about the finance, because if the finance is not to be kept in a secure way, then there will be no use of the investing of the funds.
So we have to invest our fund basic on the nature, like for what we have to invest for the short term or for the long term. If we want the funds for the short time, then we have to invest in the short security where it can be liquidated and we can use we can withdraw it for our use. So for everybody financial management is important. And so this is regarding the first अच्छा question. Now मुझे I'm ये coming. बताओ यार कि व्हाट डू यू थिंक जो स्कूल सिस्टम है, लाइक यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स स्ट्रीम, Yes, तो तुम्हें क्या लगता है yes. कि स्कूल सिस्टम में एक प्रॉपर मैनर में सिखाया जाता था ये कि किस तरीके से ये मनी को मैनेज करना है या कुछ भी, लाइक यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? Here I am from the commerce background. I can only say that 2 years is not enough to teach anybody regarding the finance, because commerce is a new subject for us, and we have only learned in the class 11th and 12th. So the basic knowledge of the accounting and about the commerce they are teaching in the 2 years, and main understanding we can only get after coming into the practical life. So they told me about the theoretical and the accounting of commerce, of the accounting and auditing of the subjects, but practically the things which are needed we can only come after the vocational. So when we come to the practical world, then these things only we can learn. What second question is what things we have to keep in mind before starting a business. So first of all, before starting the business, we must know how much funds we are having and for how much fund we are going to start a business. Let's suppose we are having 10 lakh rupees and we want to start a business. So it is in our mind for how much capital we have to invest in a business. So the first thing we require the funds needed to start a business. Second, which business we have to start. Thirdly, before starting the business, we must know about the market, what is needed in the market, and the most important thing is trend, like which thing in which we are entering, whether it will be a trend in a long term or not. We are not starting a business for the short period. So the trend which we are following, apart from that, if after some time the trend will change, whether we are capable to adopt that change or not. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें अपना फाइनेंशियल मैनेज करना चाहिए कि हमें अपना फंड उसमें कितना लगाना है और हमें मार्केट से कितना फंड उठाना है. ओके, ठीक है, तो ये तो हमें फंडिंग की बात हो गई. दूसरा, हमें जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं उसके मार्केट की हमें नॉलेज होनी चाहिए. जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए. और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजों का बहुत ध्यान देना है, एक सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी. बिना इसके कोई भी बिजनेस मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता. यार जो मार्केट से फंड उठाने वाली बात है, दैट कम्स फ्रॉम द लोन पार्ट. ठीक है, तो हम किसी से लोन लेना, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन टेकिंग लोन्स? Why? Can you repeat? What are your views on taking loan? Initially, if the person is starting a business, every business is on the loan only, because people are investing a part of his capital and taking the part of capital as a loan. Okay, so loan it can easily be granted if the forecast of the business is good and there is a well project report regarding this. So loan is very visionary, because the people are in a now a business. Nowadays people are not investing their own money, instead of they are taking the loan from the market or from the banks. Sajal, Actually, hello. Hi. I would like to add on something. Sure, go ahead. Yeah, regarding loans. Yeah, actually जो सर ने कहा, I'm totally agree. So first of all, जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, first of all we should check कि हमारे पास कितना फंड है. सपोज हमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. सपोज हमारे पास 2 लाख अवेलेबल है. फर्स्ट सोर्स होता है कि हमारे पास कितना फंड है, हमने उसको इन्वेस्ट किया, देन हमें बैलेंस रिक्वायरमेंट है 8 लाख. तो हम फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं कि रिलेटिव्स. लाइक बहुत से लोग होते हैं उनके लिए नहीं जाते हैं बैंक के पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे थिंक कोई भी रिलेटिव है, मदर है, फादर है, उनके अकाउंट में कुछ फंड्स होता है तो उनसे बोरो करो. आफ्टर वंस वी लुक फॉर द इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्ट करता है, देन आफ्टर लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है बोरो लोन फ्रॉम द बैंक्स. So हम बैंक के पास जाते हैं and we ask for the loan. So this is a process of the investing.
like first we will identify कि हमारे पास कितना fund है, then we will go to our relatives like mother, father and किसी cousin, brother who can we can borrow money from them and we can give them interest like a market rate interest 8% or even below the market rate. So that is very cheap rate interest which you can borrow from your relatives. And third option, as I told you earlier, like we will look for the investor. Is there any investor available in the market? Then the fourth one is borrow loan from the bank. So this is the whole process of first of funding. So over to you, Sajal. Yeah. सजल Sajal. सजल अनम्यूट करके हाँ Wait, अमन ये एंड एक और चीज है अमन और सजल दोनों साथ में बैठे हुए हैं वो हमें पता चल रहा है लगातार ओके एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि ये जो लोन वाला सिस्टम है लाइक माय डैड ऑलवेज से कि अगर आपने कोई लोन लेना है अगर आपने एक लाख रुपए का लोन ले रहे हो आप तो अगर उससे आप 1,30,000 या 1,40,000 उस चीज से कमा रहे हो तो आप तो वो लोन ले भी लो क्योंकि एक साल में आपको इंटरेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि 1 लाख का आपको 1,20,000 रुपए देना पड़ेगा अगर आप उससे कम से कम 10-20,000 कमा नहीं रहे हो तब तक वो लोन लेना बेकार है नहीं तो ईएमआई आप ऐसे पेश करते रह जाते हो और यूजलेस हो जाती है पूरी सिचुएशन बिल्कुल सही बात है हाँ बिकॉज अगर जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है अगर आपको उससे रिटर्न उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं हो रहा है देन इट विल नॉट बी वर्थफुल समटाइम्स पीपल यूज टू save their own money and invest it into another source and take the money from the bank and invest it into their own business. जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है उसके पास अपने 10 लाख रुपीस होंगे but instead of investing his own 10 lakh rupees into the business he preferred taking the loan from the bank and invest that money into the business. अच्छा तो वो अपने 10 लाख को किसी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर देता है और 10 लाख का लोन लेता है बिकॉज मतलब लोन अपने लेना खुद के पैसों पे वो लोग रिस्क नहीं लेते मार्केट के पैसे पे रिस्क लेते हैं जैसे कि अभी पुराने लोग बोलते थे कि यार किसी भी हालत में आप लोन उठाओ ही मत आपके पास जितना भी है छोटा मोटा उसी से करो बट द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट इज कि अपना पैसा स्टेडी रखो स्टेबल रखो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट में डालो और मार्केट के इसका बेनिफिट क्या है मुझे पहले तो ये बताओ इस चीज का क्या बेनिफिट है आप कर्जे में रहते हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसका क्या मतलब है आज की डेट में अगर हमारा इंटरेस्ट देखा जाए तो 10% या 12% इससे ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो वो ओवर द पीरियड 20 to 30% रिटर्न दे देता है ठीक है और अगर हम अपना फंड अगर हम बिजनेस में लगा देंगे तो वी आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज इन द बिजनेस बट अगर हम बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस में लगाएंगे और अपना फंड किसी और कहीं और इन्वेस्ट करेंगे then there are two source of investments and two source of growth है ठीक है आपको बात समझ में आई सपोज करिए 10 लाख रुपीस है businessmen what they are doing they are instead of reinvesting the 10 lakh into the business they prefer taking the loan from the bank and 10 lakh they are taking the property after some time when the property rate inflates they used to sell the property okay so they are seeing the opportunity if outside the business there is opportunity to invest then they invest the funds outside the business and if there is not any opportunity then they used to invest the अच्छा तो इस चीज से हमारा एक पॉइंट निकल के आया कि हमें एक एक्स्ट्रा चीजें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमारा होना चाहिए या हम मल्टीपल प्लेसेस में वी नीड टू इन्वेस्ट तो अब आप मुझे ये बताओ व्हाट आर द गुड प्लेसेस टू इन्वेस्ट अभी हम शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट शेयर मार्केट उसके अलावा आप बताओ मुझे यार इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आप बिजनेसमैन हो सर्विसमैन हो बिकॉज सबकी जरूरतें अलग होती हैं सबके इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया अलग होता है लाइक मैं आपको जैसे मेरे फादर सर्विस मैन है तो उनका क्या रहता है कि उनकी जितनी सैलरी आती है उन्हें अपना जो एक्सपेंस और अपना इन्वेस्टमेंट है वो उसी में से देखना पड़ता है so serviceman is not in the position to take any risk during their lifetime जो मैंने अभी तक देखा है अपने यहाँ भी औरों के यहाँ भी तो they used to invest the money into the low risk securities like FDRs
ठीक है ना। अगर बहुत कोई रिस्क ले सकता है देन दे यूज्ड टू गो फॉर द म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्क है, ठीक है। बट अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो जो इन्वेस्ट करता है वो इन सब चीजों में नहीं करता है, वो सीधे प्रॉपर्टी में या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। और अभी भी गोल्ड और प्रॉपर्टी सेफ चीज है इवन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन और जो पूरा मार्केट क्रैश हुआ है। बिल्कुल, वो दोनों ही सेफ चीज हैं। और इन्वेस्टमेंट का ये भी होता है कि हम इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहे हैं तो लोग प्रॉपर्टी लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं तो दे यूज टू इन्वेस्ट इन द एफडीआरस व्हिच कैन बी लिक्विडेटेड एट एनी टाइम। So these are the source of investments for the various type of people. और एक बात मुझे पूछना है कि जैसे अभी हमारी बात हुई कि लोन उठाना चाहिए और फिर अपना कैपिटल हम सेफ रख सकते हैं और फिर लोन के पैसे पे हम बिजनेस कर सकते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि लोन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ही मिलता है जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, जिनके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है या फिर उनके पास मॉर्गेज रखने के लिए कुछ चीज है। तो क्या लोन सभी को मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है और किस बेसिस पे मिलता है? देखिए, लोन जो है, अगर आप इनिशियल अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बैंक कुछ सिक्योरिटी में अपने पास रखेगा। लेट सपोज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो देन ही विल मॉर्गेज द पेपर ऑफ द लैंड और द बिल्डिंग। और अगर जैसे जैसे आप बिजनेस ग्रो करते हो, जैसे रिलायंस है, रिलायंस इतना ग्रो कर चुका है कि बैंकर्स को मालूम है दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू रीपे द लोन्स। तो उस केस में दे आर टेकिंग द पेपर जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटीज एंड टू फुलफिल और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इसी वजह से लोग भाग जाते हैं पैसा लेके। हाँ, तो मतलब अब इसी चक्कर में ये बनाया गया है कि बैंक्स के भी टाइम टू टाइम ऑडिट होंगे और ऑडिटर्स जो प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, अमन म्यूट करना। हाँ, इसीलिए ये प्रोसीजर बनाए गए हैं कि जो बैंक्स, जो भी हमारे लेंडर्स वगैरह होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, एक तो बैंक ऑडिट होता है कि बैंक जो भी लोन दे रहा है उसके बिहाफ पर वो सारे उनके पेपर्स वगैरह, फिजिकल वेरिफिकेशन, जिस पर्पस के लिए उन्होंने लोन लिया है क्या वो पर्पस फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिजनेस के लिए लोन ले रहा है और कहीं शेयर में इन्वेस्ट कर दे रहा है, क्योंकि बाद में अगर वो लॉस हो गया तो अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? बैंक करेगा। तो इसीलिए बैंक या लेंडर जो भी हमें डोनर होता है, जो भी मतलब पैसे हमको देता है, उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वो हमें कोई भी पैसा दे तो उसके लिए सारा डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट रखे। तो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर लोन रहता है तो उनका रहता है जिन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, जिनकी गुडविल बन जाती है, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो उनका पेपर्स की वजह से लोन नहीं रहता है। पेपर्स फॉर्मेलिटीज बाद में हो जाती है, प्रैक्टिकली लोन मिल जाता है। क्या ये लोन कभी इंश्योर्ड होता है कि अगर बिजनेस लॉस में गया तो आपको कुछ उसके अंदर क्लॉज वगैरह रहेगा, या फिर ये टोटली रिस्क के लिए प्रोट रहता है आपका बिजनेस और लोन अलग? नहीं, इसका भी इंश्योरेंस होता है कि इनके लिए बैंक वाले इंश्योरेंस करवाते हैं। बिजनेस का तो इंश्योरेंस होता ही होता है कि सपोज करिए कि मेरे यहाँ कोई स्टॉक है तो स्टॉक का मैं अपना इंश्योरेंस करवाऊंगा। इनकेस अगर वो जल गया या फिर चोरी हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाऊंगा। बैंक वाले भी इंश्योरेंस करवाते हैं कि इनकेस अगर उनका कोई लेंडर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके लिए भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। अच्छा, ओके। मतलब एक और फायदा है लोन लेने का कि अगर आपकी कोई बिजनेस डूबता है तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, लोन जो आपने उठाया है वो डूबेगा। और लोन में एक और चीज होती है, लोन का एक वो भी सिस्टम है कि लिमिट बनवाना, लिमिट वाला एक होता है, अलग अलग टाइप होते हैं। मैं अमन तेरे ऑफिस में आया था एक बार तो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट आल्सो। तो उसका क्या सिस्टम होता है कि लिमिट अलग हो जाती है बैंक में बनवाना, डायरेक्ट लोन अलग हो जाता है, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स। तो वुड यू लाइक टू शेड सम लाइट ऑन इट? लाइक ये जो लोन्स का प्रोसीजर होता है, सीसी लिमिट होता है, एक टर्म लोन होता है। लाइक सीसी लिमिट इज डिपेंड अपॉन द टर्नओवर एंड स्टॉक यू हैव। लाइक अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है एंड दे हैव प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स व्हिच रिक्वायर्ड टू अवेल द लोन, देन बैंक फाइनेंस कर देता है। जस्ट सपोज अगर आपका टर्नओवर इन एनुअली 1 करोड़ का है तो बैंक कैन इजीली फाइनेंस 20 lakhs अप टू 20 lakhs रुपीस सीसी लिमिट व्हिच यू कैन यूज इन योर डे टू डे एक्सपेंसेस। लाइक टर्म लोन होता है, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, देन दे हैव टू परचेज लॉट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो उस प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज रख के जो बैंक लोन देता है दैट इज कॉल्ड टर्म लोन। सपोज आपको 10 लाख की कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करें, 10 लाख की आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी,
देन उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो आपको लोन देता है, दैट इज कॉल्ड टर्म लोन। ठीक है। कि आपकी जितने भी प्लांट एंड मशीनरी है उसके अगेंस्ट में आपको लोन प्रोवाइड किया है। दीज आर द काइंड ऑफ द लोन। एंड एक लोन चल रहा है लाइक जो बिग लैंड बिग बिजनेसमैन होते हैं उनको तो लोन इजीली मिल जाता है जिनके पास प्रॉपर्टीज एंड ऑल। नहीं, तो लेकिन अब मुझे जो एक एक फिर बिजनेस से जिसका कोई प्लीज प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं इट कि तो उसके लिए एक क्या तो प्रधानमंत्री, टर्म लोन हो गया और दूसरा कौन सा टाइप बताया तूने लोन का? एक हो गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए सीसी लिमिट, like CC सीसी limit. लिमिट। It's also ओके, सीसी it's लिमिट। also part of a term loan, but a different kind of loan. वुड यू Term loan हो एक्सप्लेन गया इट? which you will have to pay in a EMIs. ओके, हाँ। Like आपने आज अवेल कर लिया, then you will have to pay it in a EMI. आपकी एक मंथली EMI हो जाएगी for 5 years, 7 years, depends on you आपको कितने टाइम का चाहिए, बैंक के जो भी आपका एग्रीमेंट होगा। CC लिमिट होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लाइक इस पे इंटरेस्ट डेली बेसिस पे लगता है। आपकी सपोज 2 लाख की लिमिट चल रही है, अगर आपने 180 उसमें यूटिलाइज कर रखा है 1,80,000 तो उस पे ही इंटरेस्ट लगेगा आपका। अच्छा। और इंटरेस्ट जो एक्रू होगा हर एनुअली मंथली होता रहता है उसके अंदर। दैट इज कॉल्ड सीसी लिमिट। ओके। और कौन सा वो प्रधानमंत्री एंड वाला लाइक बता रहे थे? हाँ। स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं 20 lakhs या अप्रोक्स समवेयर बिलो 50 lakhs होता है, बट उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है मॉर्गेज रखने के लिए। तो यहाँ प्रधानमंत्री का योजना का एक लोन चल रहा है, मुद्रा लोन, in which their bank are financing without any security. Okay. So you can apply for the Mudra loan if you don't have any like property or anything to mortgage. So कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है? या कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है या तो फिर कोई भी अदर चीज क्या नहीं। हुआ मतलब कि अरे मैं उठ के आता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को मुद्रा लोन दे दो, तो लाइक दे विल बी लुकिंग एट समथिंग ना कि बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड और डिपेंड, समथिंग आपको बैंक जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, लाइक आपका टर्नओवर कितना है। अगेन देयर इज अ दे विल बैंक हैव टू हेलो बैंक हैव टू नहीं, अगेन बैंक आपको लोन देने से पहले आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी देखेगा कि लाइक आपका टर्नओवर कितना है, आपके मंथली अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, कि ये कोई फ्रॉड बोरोवर तो नहीं है, क्योंकि आपने मुद्रा लोन जो होता है विदाउट एनी सिक्योरिटी होता है। आर यू रेगुलर टैक्स पेयर, आपके लिए उसके लिए आईटीआर देनी पड़ेगी। ओके, वी आर बैक एंड नाउ हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट तो आना ही है। सो वी हैव अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट Srijan with us. So I'd like to ask you a very basic question again कि किस तरह से अगर कोई नया पर्सन है जिसको ज्यादा नॉलेज है नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में, उसने सुना है कि यार यहाँ पे बहुत अच्छे जल्दी रिटर्न्स मिलते हैं एंड उस पर्सन को सीखना है और करना है, तो उसने किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, क्या चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए, और बेसिकली उसने किस तरह से सीखना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है इनिशियली? सो thanks for inviting me on your platform, Tree of Victory. आप जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई एक सैलरीड पर्सन जिसके अराउंड 50,000 अगर पैसे आ रहे हैं तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, रिस्की है नॉन रिस्की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द टू मेन ऑप्शन एट शेयर मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड. Share market is a direct way where you can invest for a more gain. That in mutual fund you get the simplified management by the asset management company that manage your fund in their own way. Okay, because they can you repeat that again? थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन और थोड़ा सा हिंदी मिक्स करके बता दो प्लीज। हाँ, ताकि लोगों को आसानी से समझ आए। ओके 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 ओके। जब आप शेयर मार्केट में जाते हो तो शेयर मार्केट में आपका एक व्यू होता है कि आप कम टाइम में ज्यादा गेन कर सको, ठीक है? तो कोई भी नया बंदा होता है उसे शेयर मार्केट बिकॉज एफडी में जो आपके रिटर्न मिलते हैं 8, 9 to 10, ये पहले थे अभी आज से 2-3 साल पहले, जिसमें आपको एक साल में 8 से 9 से 10, जैसे आपने 1 लाख लगाया तो आपको साल में 10,000 रुपीज इन रिटर्न मिलेंगे। अभी तो आपके रिटर्न और भी कम हो गए हैं, जैसे ये अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, कोरोना आया तो और कम हो के आई थिंक 7.5 से 8% हो चुका है। तो आप शेयर मार्केट में जाते हो, शेयर मार्केट में जाने के सबसे पहले आपके जो डो है डीमैट अकाउंट, एवरीबॉडी हु वांट टू इन्वेस्ट हैव टू ओपन द डीमैट अकाउंट विद द ब्रोकर। खुद से नहीं खोल पाते, खुद से डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकता है कोई पर्सन?
खुद से नहीं, आप खुद से नहीं खोल सकते हो. You have agency, depository participant. There are two Okay. agencies, NSDL and CDSL. Okay. Get Okay. connected to that both agency. And there are brokerage And like Sher Khan, HDFC Security, ICICI Security. अभी तो ये ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं. पहले लोग जाते थे कि वहां पे आप जाके फॉर्म भरो, ये करो. अभी तो ऑनलाइन OTP आता है, आधार वेरिफिकेशन हो जाता है. मोस्टली कंपनीज में आप ओपन कर सकते हो. Okay. तो खर्चा कितना आता है ये अकाउंट ओपन करने? अकाउंट ओपन का आजकल नॉमिनल है. मेनली आजकल ब्रोकरेज एजेंसी आपको लालच देती है कि आप अकाउंट बस ओपन कर लो. हाँ. तो उसके लिए Okay, आपको जीरो फीस में भी ओपन कर सकते हैं. बिकॉज दे चार्ज द एनुअल मेंटेनेंस एंड मोर ओवर दे चार्ज ऑन द योर इन्वेस्टमेंट मनी. आपने जैसे शेयर मार्केट में आप टारगेट लेके चलो, आप 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है. तो जो आप 5 लाख करोगे उस पर तो उसको ब्रोकरेज आनी ही आनी. तो उसकी इनकम आपकी डायरेक्ट है. तो आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए उनका. तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कोई भी जब एक आम जैसे मैं हूँ या कोई भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, उसे ये चाहिए होता है कि मेरा पैसा जो मेरे पास, अगर मेरे पास 5 लाख सेविंग हो गई आफ्टर 2 और 3 ईयर, कि मैं उसको 5 लाख से ज्यादा ग्रो करूँ. तो वो शेयर मार्केट की तरफ नजर डालता है कि मुझे कम टाइम में. एक तो सबसे पहली बात, आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड कभी भी पैसे निकाल सकते हो एनी टाइम. एंड ये भी है कि आप पैसे निकाल के इसे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन 1 और 2 डेज. तो शेयर मार्केट में आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि शेयर मार्केट दे आर द कंपनीज. सजल, अमन की आवाज आ रही है. हेलो. Which are listed on the two platform, BSE and NSE. Every company have the assets, liability, they earn the profit on their basis. Share market price run in the market on the estimation and their fundamentals. So आप अगर शेयर मार्केट में जा रहे हो तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि यार मैं खुद स्टडी कर लेता हूँ. स्टडी करके देखता हूँ शेयर कितना ट्रैक. जैसे आजकल बहुत सारे एप्स भी आ गए, मनी कंट्रोल, ईटी टाइम. आप वहां जाते हो, आप ये चार्ट खोल लेते हो, चार्ट में देखते हो कि ये शेयर पिछले 1 साल में 30% बढ़ा, 40% बढ़ा या 200% भी कुछ बढ़ जाते हैं, गिरते भी हैं. तो आप उस चार्ट के बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो कि आपको लगता है कि यहाँ से मेरा स्टॉक बढ़ सकता है 10 to 20%. आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया. बट दैट इज द, आई थिंक दैट इज यार पहले मुझे ये बताओ, जैसे फॉर अ पर्सन लाइक हु इज न्यू, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है इसका, तो पहले तो ये बताओ म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर ये SIP क्या होता है क्या चीज? ओके. म्यूचुअल फंड इज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी. वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं आपके लिए. दे इन्वेस्ट योर मनी ऑन योर बिहाफ. सो म्यूचुअल फंड को हम एक प्लेटफॉर्म की तरह उसे समझ सकते हैं जो हमारा ही पैसा हमारे से कुछ अमाउंट चार्ज करके वो मार्केट में फर्दर इन्वेस्ट करते हैं. तो मतलब ये है कि एक एक्सपर्ट पर्सन वो मनी को इन्वेस्ट करेगा. जैसे हमें इन्वेस्ट करना नहीं आता, हमें शेयर का ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हमने एक ज्ञानी बंदे को ले लिया कि भाई तू मेरे लिए हायर कर दे, और वी ट्रस्ट हिम कि भाई वो ढंग की जगह करेगा. अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन इज कि अगर वो ढंग की जगह ना करे तो क्या करें हम? ढंग की जगह आपको उसके लिए आप फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं आपको. जैसे शेयर मार्केट है आपका हमेशा 24/7 ओपन है, वैसे म्यूचुअल फंड है. आपके जो वर्किंग डेज है उसमें आपका म्यूचुअल फंड एक तो IPO आता है, जैसे शेयर्स की IPO आती है इनिशियल. इन दैट वे म्यूचुअल फंड के भी IPO आते हैं. एट दैट टाइम आपका रिस्क है, आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, आपका कौन मैनेज कर रहा है या फिर आपकी कंपनी कौन सी है. अच्छा, ये देखना होता है. लेकिन तो सब तो कह देते हैं, जैसे अभी सजल भी डिस्कशन में क्या था कि म्यूचुअल फंड लाइक वो होते हैं कि सेफ चीज है. तो सेफ है तो फिर चेक क्या करना है फिर? इफ म्यूचुअल फंड इज सेफ तो व्हाट वी हैव टू से? या इट इज सेफ इन कंपेयर टू अदर रिस्की सेगमेंट लाइक शेयर, like crude oil trading. There are many types of various trading. In the mutual fund is the proper investment because they diversify your portfolio. जब हम म्यूचुअल फंड बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आपका हो सकता है म्यूचुअल फंड के भी काइंड्स होते हैं.
कुछ होते हैं म्यूचुअल फंड आपकी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी आपके फंड आपके मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए को ऐसा नहीं कि उन्होंने 100 रुपए आपने रिलायंस में लगा दिए, कुछ आपके ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर की टॉप कंपनी लाइन जैसे रिलायंस हो गया, कुछ आईटी कंपनी में इन्फ्लोसिस, कुछ आपके लगा है आपके बैंकिंग शेयर में लाइक एचडीएफसी, एसबीआई, तो दे डाइवर्सिफाई योर फंड, एक डूबेगा दूसरा बढ़ेगा, तो रिस्क अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ मुझे 8 से 10, 15, 20% रिटर्न मिल सकता है, रिड्यूस हो जाता है, दिस इज लाइक वी आर पॉजिटिव विद दिस। हाँ, लेकिन भाई खत्म भी मतलब सारे उसने अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल यस बैंक तो मैं समझता था कि अच्छा खासा बैंक है, अब वो डूब गया पूरा, हाँ तो भाई मेरा तो पूरा पैसा गया। वो आप अपने रिस्क पे लगा रहे हो, आप अगर शेयर मार्केट में कभी लगा रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि दैट इज एट योर रिस्क। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर मार्केट, मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड की कोई गारंटी है कि मतलब सही होगा? म्यूचुअल फंड की देखियो गारंटी तो कोई नहीं देता आपको, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड आरडी के अलावा सजल कोई यू आर सेइंग डिपॉजिट समथिंग। आपको यार देखो, जैसे म्यूचुअल फंड जो है ना, हाँ, आप जब भी म्यूचुअल फंड को एडवर्टीजमेंट देखोगे तो एक टैगलाइन है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। टू मार्केट। So आप सर यू वांट टू कैरी ऑन? हाँ सजल क्या बता रहे थे, बताओ। हेलो हेलो, आवाज आना बंद हो गई। अमन आपने म्यूट किया हुआ है, सजल की आवाज आ नहीं रही है। अमन लाइक यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? या आ गई मेरी आवाज, आगे चली आ रही है आवाज? अमन आवाज आ रही? अभी आ रही है। हाँ सजल क्या बोल रहे थे आप? फिर से गई। बोलो फिर। मैं कह रहा था कि म्यूचुअल फंड का कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है उसमें एक टैगलाइन होती है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो एक हमारे पास लो रिस्क सिक्योरिटीज केवल बैंक की एफडीआर होती है, बाकी हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं देयर इज सम अमाउंट ऑफ रिस्क। दो म्यूचुअल फंड जो भी है वो हमारा जो पब्लिक से जो पैसा उठाया होता है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। सो दीज थिंग्स आर डन बाय द प्रोफेशनल्स। इसीलिए म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग द प्रोफेशनल, दे आर हैविंग द एनालिस्ट जो कि जो पैसा होता है वो अच्छी जगह लगाते हैं। जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कहा कि भाई मैं लगाऊंगा तुम्हारे पैसा, 4-5 लोग हैं, मैं बन जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड वाला बंदा कि चलो मैं लगाऊंगा पैसे तुमसे, ठीक है, तुम लोगों से लेके, तो अब मैं खराब कर दूं काम। So like how a person will become a mutual fund वाला person? Like I am a noob, I know it sound like very stupid, but इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन बन सकता है? म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी आवाज आना बंद हो गई सर। आपकी आवाज मेरे को थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, सो मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। हेलो, मैं आंसर दे सकता हूँ? हाँ सृजन बताओ। एक्चुअली म्यूचुअल फंड इज बहुत कॉर्पोरेट होते हैं। No one individual can become a sponsor person who invests on behalf of others. They are the sponsor companies. Like if you take the HDFC Limited, उन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई, उसके थ्रू उन्होंने एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हायर किए, वो एनालाइज करते हैं, एनालाइज अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, अब मेरा पता है क्यों, why I asked this question। एक रीजन है कि एक था कि एक टाइम पे, इवन अभी भी कई बार, कि हम वी सी ए न्यूज, रीड दिस न्यूज कि भाई चिट फंड वाली कंपनी भाग गई, तो आई वांट टू आस्क कि ऐसा भी ये वाली कंपनी तो नहीं भागती? नहीं, बेसिकली व्हाट अमन इज ट्राइंग एक्चुअली हेलो Basically, what Aman is trying to ask is कि what are the red flags to be careful about? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसके पास जा रहे हो, तो क्या रेड फ्लैग्स है कि आप सतर्क हो जाए? नहीं, आप अगर म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हो, सबसे पहले आपका सेफ रिस्क ये हो जाता है कि वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, मतलब there is a government authority which gives them permission to invest our money. Which regulate and SEBI is very strict.
अथॉरिटी। तो वहां पे अभी तक मुझे मेरी नॉलेज में कोई भागने का रिस्क नहीं हुआ कि किसी म्यूचुअल फंड ने पैसे उठाए और वो भाग के चला गया, भाग बिकॉज अच्छा। चिट फंड कंपनी अपने बिजनेस में लगाते हैं, ये आपका अच्छा। यहाँ पे इन द पब्लिक मनी, दे रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड दे इन्वेस्ट अगेन इन द पब्लिक सेक्टर, सो देयर इज नो पर्सनल एसेट्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ भागने का मतलब कोई चीज़ है। बेसिकली गवर्नमेंट तो वाज नॉट इन्वॉल्व, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। या इनडायरेक्टली। ओके, ऑलराइट। सो कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज है जो रिकमेंडेड है? अच्छा, आई लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरे पास सपोज 1,00,000 रुपए है, ठीक है, और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड कि मैं कहाँ पे जाऊँ, किसके शेयर्स लूँ? जनरली शुरुआत करने का सेफेस्ट तरीका कौन सा होगा? मैं किसके साथ कंसल्ट करूँ, किसके थ्रू जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ? लाइक व्हाटएवर यू कैन Sanket, टेल can अबाउट। I answer? Sanket, can हाँ I हाँ, answer? श्योर श्योर। डेफिनेटली डेफिनेटली। Yes, Sanket, अगर if you are new to the share market, हाँ so आपको क्या है, ब्लू चिप कंपनीज में जाना चाहिए। ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है? जो हमारा सेंसेक्स का इंडिकेटर होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे रिलायंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, दीज आर द ब्लू चिप्स कंपनीज, जो जिनके बेसिस पे हमारा शेयर मार्केट में पता लगता है कि वेदर द शेयर मार्केट इज ग्रोइंग और वेदर द शेयर मार्केट इज गोइंग डाउन। So these companies are the indicator. Basically, these are the 50 companies. So if you are, main चीज सबसे पहले अगर आपको शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा whether you are having the idle funds or whether the fund is requirement for the short period or not. Because शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर ब्लू चिप कंपनीज में आप लगाओगे तो definitely they will grow, but it's not definite that they will grow in the short term. ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या yes. अब जैसे आईटीसी का शेयर है, तो आईटीसी हमारी बहुत अच्छी कंपनी है, जो पता है कि काफी कैश रिच कंपनी है, उसके काफी सारे सेगमेंट्स हैं, तो वो नहीं डूबेगी। तो मैंने आज 1,00,000 रुपए लगाया, मैं ये सोचकर अगर लगाऊं कि मुझे 3 महीने बाद निकालना है तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो ये डेफिनेट नहीं है। अच्छा, ओके। तो 3 महीने में इसका शेयर गिर भी सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो दे विल प्रोवाइड अस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग इनटू द बैंक्स। So, अगर आपको शेयर मार्केट में लगाना है पैसा, तो आप अच्छी कंपनीज में लगाओ, और ये सोचकर मत लगाओ कि मैं 2 महीने 3 महीने के लिए लगा रहा हूँ। यू हैव टू कीप पेशेंस व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द शेयर मार्केट। सो कितना डिफरेंस होता है कि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें कितना डिफरेंस होता है? और अगर जनरली चीजें एक जैसे जनरली गई, ज्यादा हाई भी नहीं गई, ज्यादा लो भी नहीं गई, तो कितना डिफरेंस आएगा कि मैंने शेयर मार्केट से मुझे प्रॉफिट होगा उसमें, और जो इंटरेस्ट मुझे बैंक से मिलेगा उसमें? ऑन एन एवरेज देखो, ये डिपेंड करता है। अब जैसे कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं, जैसे शेयर का फ्लक्चुएशन डेली मिनिमम बता रहा हूँ मैं कि 2% अप 2% डाउन होता है। तो लोग ऐसा भी करते हैं कि आज शेयर खरीदा, 3 दिन के बाद 2% बढ़ा, बेच दिया, फिर गिरा, फिर खरीदा। तो वो डिपेंड करता है कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 1% बढ़ेगा, कि आज अगर 900 का है अच्छी कंपनीज का शेयर, तो वो अगले साल तक 1,000 रुपए हो जाएगा या 1,100 रुपए हो जाएगा। यानी कि 10% से 15% लेना आराम से निकाल कर देगा। ठीक है ना? और अगर आप ऐसे करते हो कि आज खरीदा कल बेचा, तो उसमें आपको ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो रिस्क पे डिपेंड करता है। और शेयर मार्केट में अगर आपको घुसना है तो यू मस्ट बी अपडेटेड विद द न्यूज ऑफ द कंपनी, यू मस्ट बी अपडेटेड विद द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। आपको इन सब चीजों से अपडेट होना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अर्न फ्रॉम द शेयर मार्केट। लाइक अगर आप अभी के करंट सिनेरियो में देखेंगे तो सारी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो लगभग 40 to 50% गिर चुके हैं। ठीक है? और अब अगर मैं देखूं तो पिछले 15 दिन में सारी कंपनीज के शेयर्स में रिकवरी भी शुरू हो गई है, बट दैट इज नॉट द रिकवरी। अगर ट्रू सेंस में देखें तो वो रिकवरी नहीं है, बिकॉज दीज शेयर्स आर बीइंग मॉडिफाइड, और ये जो अप डाउन हो रहा है इसका, ये करवाया जा रहा है, ये एक्चुअल नहीं है। तो ये इसमें अभी शेयर मार्केट में रिकवरी दिखा रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया धीरे धीरे, क्योंकि बैंक के रिटर्न जो है वो कम हो गए हैं, कि बैंक्स ने जो पहले एफडी पे 6% देता था, उन्होंने और कम ही कर दिया। 5% अभी मैंने करवाई है, अभी लास्ट वीक बैंक ऑफ बड़ौदा। तो क्या अब लोगों का इंटरेस्ट क्या है, इसकी वजह से शेयर मार्केट में आ रहा है। लेकिन जो लोग अभी अगर शेयर मार्केट में घुस रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि शेयर मार्केट जो अभी उठ रहा है
वो एक्चुअली नहीं उठ रहा है, वो केवल उठाया जा रहा है, ठीक है ना। ये मार्केट के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इस मार्केट को उठा रखा, भी मार्केट में कुछ भी नहीं है, बिकॉज रिकवरी का तो अभी कोई सेंस ही नहीं बन रहा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी जब तक रिकवरी कैसे हो सकती है। तो क्या लगता है कि अभी बंदे को इन्वेस्ट, अगर इफ आई हैव 1 लाख स्पेयर, ठीक है, तो मैं लगता है अभी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या करेंटली तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप शेयर मार्केट में अभी घुसो, बिकॉज इसमें अभी ये शेयर एक बार अभी और है अभी करंटली की, जिससे ये जो हेलो हाँ मैं पूछ रहा था कि व्हाइल यू आंसर दिस वन, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका है या फिर ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई गैप है जिसको हम यूज करके ये जो कोरोना क्राइसिस है इसको कैपिटलाइज करके कोई ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पे हम लोग इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं? ऐसा कुछ हैक या फिर देखो, शॉर्ट पीरियड के लिए तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा बना सकते हो, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी इतने गिर गए हैं कि दे विल टेक अराउंड 1 और 1.5 years टू गेट इट रिकवर्ड। ओके, ठीक है। तो अभी तो वैसे भी अभी एक बार और झटका लगना ही है, और एक बार और मार्केट अच्छी तरह गिरेगा, बिकॉज अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, जैसे 2008 में भी एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो डिप्रेशन में भी ये हुआ था कि शेयर मार्केट एकदम गिर गया था, उसके बाद थोड़ा उठा था, थोड़ा उठने के बाद एक बार फिर से फॉल आया, जिसकी वजह से जिसको रिकवर होने में 1 से 1.5 साल लगा। तो अगर यू आर हैविंग द पेशेंस टू preserve the fund for the 1 year, then you can go for the share market, but अभी कम से कम 1 महीना तो रुक जाओ, बिकॉज 1 महीने में अभी फिर से डाउनफॉल आएगा। अच्छा, बेसिकली अभी तो 1 साल तक वाला है कि कोई भी रिटर्न आएगा तो साल भर के बाद, तो मतलब आपको अगर मनी इन्वेस्ट करना है तो 1 साल करके भूल जाओ। नहीं अभी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर आपके पास कोई भी अगर आइडल फंड्स पड़े हुए हैं जो आप लगता है आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो वो सिंपली आप उसकी एफडीआर करवा दो। मैं अभी यही रिकमेंड करूंगा, बिकॉज अभी का टाइम केवल प्रिजर्व करने का है, रिटर्न लेने का नहीं है। बिकॉज अभी किसी का भी कुछ भी नहीं पता, बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट भी गिरते जा रहे हैं, बिकॉज अब इतना रिसेशन आ चुका है ना कि ये काफी टाइम लेगा। और आप मान लो प्रॉपर्टी में भी लगाते तो प्रॉपर्टी का कोई पता नहीं है कि प्रॉपर्टी के रेट कब गिर जाए। तो अभी आपको केवल अपनी वेल्थ जो है वो सेव करके रखनी है इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जहां सिक्योर मेथड में, चाहे बैंक एफडीआर में 5% मिल रहा है, लेकिन आपका प्रिजर्व है, रिस्क नहीं है उसमें, तो आप लो रिस्क सिक्योरिटी में डालो। बिकॉज अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं पता कि कितना वास्ट होने वाला है जब तक वैक्सीन नहीं आती है, और अभी शॉर्ट पीरियड में ये इससे हम कोप अप भी नहीं कर पाएंगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। अरे यार, रामदेव बाबा जी ने बना लिया था, बस वो थोड़ा सा रह गया। स्टॉक एक्चुअली मार्केट अभी की जरूरत। आई वांट टू ऐड समथिंग। एक इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, यूएस के, उन्होंने जब यूएस की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन तक आई, उन्होंने सारा अपना शेयर लिक्विडेट कर लिया। क्योंकि उनके एक लिक्विडेट माने मतलब शेयर मार्केट जस्ट पूरा सेल ऑफ कर दिया है, कैश कर लिया है। अब या तो सबसे ज्यादा स्मार्ट वो हैं, या हम हो सकता है उनसे ज्यादा स्मार्ट हो। तो अभी मार्केट ने ऐसा नहीं कि मार्केट ने रिकवर नहीं किया, मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर किया है। बहुत सारे स्टॉक्स ने 40 to 50 इवन 100% आपको भी रिटर्न दिए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देख के आप मार्केट में एंटर कर जाओ। मार्केट हमेशा टू वे चलता है, कभी आपको अपवे देगा, आपको मार्केट वहां पे एनालाइज करनी है कि क्या आगे मार्केट आउटलुक क्या है, मार्केट सस्टेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो मेन थिंग आपको मार्केट का आउटलुक देखना है कि फ्यूचर क्या है। क्या तो हम एक काउंट कर सकते हैं, क्या कोरोना सही हो गया? आंसर है नहीं। क्या आपके बैंक एंड एनबीएफसी जो रिस्क पे हैं वो सही हो गए? फंडामेंटल्स कहते हैं अभी नहीं। तो फिर क्यों शेयर मार्केट बढ़ेंगे? हो सकता है अभी लिक्विडिटी बढ़ी हो, क्योंकि शेयर मार्केट एक फैक्टर पे नहीं चलता है। आपके फंडामेंटल्स अलग जगह होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट अलग जगह होती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इन्वेस्ट करते हैं। सो फॉर दैट रिस्क शेयर शुड बी इन्वेस्टेड विद द ओनली द डीप नॉलेज। अच्छा, आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये डिविडेंड क्या चीज है? Dividend is the something that you give in return. If a company earning the profit throughout the year, okay, like उसने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, ओके, उसके पास 1 लाख शेयर हैं। अब वो चाहेगी कि मैं 1 करोड़ के प्रॉफिट
का 50% मैं डिविडेंड दे दूं, 50 लाख रुपए, तो उसके पास 1 लाख शेयर है, तो वो 1 लाख शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड कर देगी। तो ये वो कंपनी रहती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, लाइक रिलायंस, टीसीएस एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो आपको डिविडेंड रिटर्न में जाना है, शेयर मार्केट में दो तरह के रिटर्न है, एक तो आपकी डायरेक्ट आपका प्राइस इंफ्लेट हुआ है, दूसरा डिविडेंड रिटर्न, वो आपके आते हैं वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड एक ऑप्शनल चीज है, राइट? कंपनी नेसेसरीली आपको डिविडेंड देगी, ये केस नहीं है। दैट डिविडेंड इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कंपनी ऑप्शन। If they want to declare, they will declare. If they do not want, they have choice. क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं या क्योंकि उसके अंदर डिविडेंड भी मिलेगा और ये सारे they talk as if it's a necessity for them. Can you repeat the question? तो लोग ऐसे बिहेव करते जैसे डिविडेंड मिलना ही मिलना है उनको, इसीलिए वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेफर करते हैं। तो क्या ये मिथ है या फिर ये एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली कंपनीज देती है, या फिर अगर देती है तो नहीं, एक्चुअली मिथ भी नहीं है और कंप्लीटली ट्रूथ भी नहीं है। आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि आपको जब भी इन्वेस्ट कर लो, लाइक फाइनेंशियल एजुकेशन, इसको भी आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा कि आपको कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि डिविडेंड क्लियर है या नहीं है, आपको डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। आप किसी भी इंटरनेट पे आप गूगल कर सकते हो, आप निकाल लो उस पे कि आपको कितना % डिविडेंड दे रही है, किस पीरियड में दे रही है, आप इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उस पर डिपेंड कर सकती है। बट डिविडेंड इज द नॉट मेन द थिंग दैट ओनली दैट थिंग यू कैन इन्वेस्ट। लाइक आपने डिविडेंड 5% डिविडेंड के लिए आपने इन्वेस्ट तो कर लिया, बट शेयर ऐसा है कि आपको 10 to 20% निगेटिव दे दे, तो आपको फिर वही बात हो जाती है, आप अपने रिस्क पे लगा रहे हो पैसा शेयर। अच्छा, आई वांट टू ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन इन द नॉर्मल वे कि भाई अब शेयर मार्केट को तो वैसे भी सबने बता दिया कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल वे में आप लोगों को क्या लगता है कि हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू मैनेज योर मनी? लाइक जो हम लोग अपार्ट फ्रॉम द शेयर मार्केट कहाँ पे हम लोग को नॉर्मली इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट आर द सेफेस्ट वे, और उसमें क्या क्या चीज हम कर सकते हैं आज की डेट? और एक चीज, अगर एक सेकेंड, अगर आप लोग बोलने वाले हो कि रियल एस्टेट इज अ गुड ऑप्शन, तो आजकल लोग बहुत बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट मतलब इट्स डाउन पे चल रहा है और ये सारी चीजें, तो वो क्या चीज है वो भी थोड़ा सा उसके अंदर क्लेरिफाई कर देना। अमन, एक आपका एक क्वेश्चन मेरे को याद है कि उसमें था कि इफ यू आर अर्निंग 50,000 हाउ विल यू एलोकेट द सैलरी और अमाउंट इनटू द स्पेंडिंग? हाँ, ठीक है, तो मेरा ये कंसर्न है, जो एक थ्योरी है, थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप 10 रुपए का 100 रुपीज कमा रहे हैं तो उसमें 50 रुपीज यू हैव टू स्पेंड ऑन योर बेसिक नेसेसिटीज, 30% you have to spend on your travel and your luxurious things, and 20% you have to save. But current scenario को देखते हुए अगर practically देखा जाए तो 50,000 में 10% यानी 5,000 you have to spend on the insurance, because insurance nowadays is the biggest investment which will give you a return and security to your family. So यार अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक इस चीज का डाउट है, सबके पैनल पे सबके लिए है ये क्वेश्चन, और इस पे अपने व्यूज रखें। मुझे लगता है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है कि बहुत बड़ा स्कैम लगता है मुझे पर्सनली। वो इसलिए लगता है कि हेलो, आवाज आया? हाँ, आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस टाइप मोस्टली एक स्कैम लगता है। उसमें क्यों ऐसा लगता है कि नॉर्मल कोई भी आपका कोई जो जेन्युइनली कोई आपको ऑपरेशन कराना है, कुछ होना है, तो क्या करते हैं इंश्योरेंस वाले, मैंने अपनी लाइफ में या अपने नोन लोगों में देखा है कि वो लोग वहां पे जब जाते हैं तो आज के डेट में जैसे करो तो वो हॉस्पिटल चार्जिंग जो मेन जिस पर्टिकुलर चीज का इलाज है उसका आप इंश्योरेंस का दे दे रहे हैं पैसा कि इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है कि जैसे मेरे को नी सर्जरी करानी है तो पर्टिकुलरली सर्जरी वाले पार्ट का वो लोग पे कर देंगे, उसके अलावा कि भाई हॉस्पिटल में रहने का नहीं करेंगे। अभी क्या हो गया, नई पीपीई किट सब लोगों ने पहननी है, उसका अलग वो आपको पे करना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस कोई कंपनी कवर ही नहीं कर रही है। और दीज इंश्योरेंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, मैंने एक्सप्लोर किया था। अब मैं इतना पैसा, जैसे आज की डेट में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करता हूँ उसमें ईयरली मुझे करीब 20,000 रुपए से एक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के डिसेंट में आपको देना है, तो अब वो भाई 20, 40, 20, 60 ऐसे करके इवेंचुअली आप लाखों में पहुंच जाते हो। जब आपको फाइनली बीमारी का टाइम आया वो भी आधा कवर करते हैं, तो फायदा क्या है?
आप लोगों का ये सब लोगों के लिए है जेन्युइन क्वेश्चन। आप बताइए क्या लगता है? यार अमन, इंश्योरेंस लेते समय सबसे जरूरी चीज है कि हम इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से ले रहे हैं और उसकी जब तक टर्म्स एंड कंडीशन, बिकॉज मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी आप कभी भी ऑनलाइन ले या पॉलिसी बाजार के थ्रू लें। आपको जब भी इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो आप एक बंदे से डायरेक्टली मिलें, चाहे वो किसी के नोन से मिले, जो भी हमारा बंदा है हम उससे मिले, हम उससे सारी चीजें समझें, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तभी हम पॉलिसी लें। बिकॉज अब आप कहोगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस तो इतने पन्नों की होती है, कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको आपको पढ़ना जरूरी है। और अगर नोन से लेंगे तो क्लेम सेटल करने में ज्यादा आसानी रहती है और हम उसको अकाउंटेबल भी कर सकते हैं कि आपने तब बोला था, अब क्यों नहीं हो सकता। और इंश्योरेंस ऐसा नहीं है केवल हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, हर चीज का इंश्योरेंस तो जरूरी है ही। और ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपने 20,000 का करवाया और किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बार में 3 to 4 लाख आराम से चले जाते हैं आपके, ठीक है ना। अगर और इंश्योरेंस का जो पैसा है उसके लिए भी हर हॉस्पिटल में कुछ टीपीएस बैठे होते हैं जो उस चीज को भी देखते हैं कि आपका वो कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपकी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तो आपको देखो पढ़नी ही पड़ेगी, बिना उसके आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। सो आपको अपने आप में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए कभी कोई केस आता है तो आप उसको रेफर कर सके। बाकी इनके जो भी अगर कोई डाउट्स भी है तो इनके कंपनीज के अपने सेंटर्स होते हैं, आप कोई भी चीज क्लैरिफाई कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज है, क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या कहना है? क्रेडिट कार्ड एक और मुझे, मेरे दो चीजें हैं जो मुझे स्कैम लगती हैं पूरा मार्केट की, कि एक तो क्रेडिट कार्ड है, ये तो आपको पूरा बिल्कुल दबा के बिल्कुल पीसने वाला काम है, और दूसरा चीज नहीं यार, क्रेडिट का यार एक चीज बताऊं क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट थिंग मेड बाय द बैंक्स। मेरे को इससे अच्छी कोई चीज नहीं लगी है। अगर आप मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं लगभग 4 साल से क्रेडिट कार्ड चला रहा हूँ और मेरे पे आज तक 1 रुपए का भी कोई भी चार्ज नहीं लगा। इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में होता क्या है, क्रेडिट कार्ड में जो जैसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स है, उसमें आपको अभी शायद सृजन को पता होगा, जल्दी में एक IPO आया था। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो अपने बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज क्रेडिट कार्ड लोग उसको ठीक से यूज नहीं करते हैं। आपको लगेगा कि ये स्कैम है, वो हमें 45 दिन का टाइम क्यों देगा, लेकिन आप जैसे टाइम पर पेमेंट करने वाले सिर्फ 10% हो, बाकी जो 90% होते हैं वो यूजुअली डिफॉल्ट करते हैं या फिर उनका जो भी अमाउंट होता है उसको EMI में कन्वर्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट इनकम अल्टीमेटली बैंक को जाती है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक क्रेडिट कार्ड और ऐसा वाला एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने अभी आईफोन लिया, तो आईफोन वही 1 लाख का जितने का भी होता है, ठीक है, वो लिया उसने, वो भी ले लिया। ही इज क्वाइट रिच, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उसके पास पैसे की कमी है। तो उसको किसी ने समझाया कि भाई क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, ये होता है वो होता है, व्हाटएवर रीजन, तो उसने ले लिया कि बस तेरे को 3,500 रुपए तो देना है मंथली, या 6,000 रुपए तो देना है मंथली, तो उसने ले लिया। अब भाई उसका वही आईफोन टोटल कैलकुलेट किया तो 1 लाख करीब 15,000 का 18,000 का बन रहा है। वो चीज वो 18,000 अपने बचा सकता था सिंगल पेमेंट से, स्टिल पीपल आर बाइंग। तो मुझे तो कोई सेंस ही नहीं लगता यार। देखो सेंस तब होता है ना जब आपके पास पैसे नहीं होते, तब सेंस होता है। अगर आप 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लोगे तो दे विल चार्ज 13%, ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी भी बोलेगा। क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा। अगर सीधी बात है, अगर आप बिना सिक्योरिटी कोई चीज लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर वो 18% चार्ज कर रहा है, मैंने आपको अभी बोला था कि क्रेडिट कार्ड में अगर बैंक्स की इनकम होती है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिलेड चार्जेस, ठीक है ना। अब जैसे मैं भी कोई चीज लेता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए फोन लेता हूँ, मुझे ये लगता है ज्यादातर क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं वो सैलरीड पर्सन करते हैं। बिकॉज अगर मान लो मैं आज कोई 50,000 का फोन लेता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं 50,000 एक बार में दे दूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मैं उसको EMI में कन्वर्ट करवा दूंगा, सो दैट हर महीने 4,000 5,000 रुपए कटता रहेगा और मेरे को पता भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली कॉस्ट जो है वो थाउजेंड्स में तो जा रही है कार्ड की, बट उसकी वजह से आपका एक मोटा खर्चा जो अभी आपका जो लिक्विडिटी आपकी रोक देगा,
उस चीज में आपको फायदा मिल जाता है। आप अब देख देखो कोई भाई, भी चीज ऐसा अगर पता है क्या, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना जो भी मैंने इतने टाइम तक, मैं भी बाहर रहा हूँ, इतने सालों से बाहर हूँ, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पहले तो आप लोन टाइप चीज है, किसी से भी किसी भी मैनर का उधार लो ही मत, ना लो ना दो, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है हर मैनर का। अब भाई आपका वो जो पुरानी कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी वो क्षमता है, जितनी आपकी तथा है, उस हिसाब से आप चीजें लो। फर्जी में ईएमआई बढ़ा बढ़ा के अपने आप को आप बेसिकली आप उधार के नीचे दबा रहे हो, विच अब जैसे अभी सिचुएशन आ गई, कोरोना हो गया, फॉर यू लाइक यू आर लाइक डूइंग ए गुड जॉब, तो आपका जॉब नहीं गया, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनका जॉब चला गया, उन्होंने पहले का सोच के चल लिया कि यार अगले महीने मेरी इतना सैलरी आएगी, उससे नेक्स्ट मंथ आएगी और सब कुछ सेटअप हो जाएगा। अब आपने अपने आप को प्रेशराइज कर लिया। इसी वजह से मैं जितने भी मतलब मेरे जो भी इसमें लाइफ स्किल ट्रेनिंग में जितने भी स्टूडेंट आते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि आप अभी कोई भी लोन वोन मत लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर है। आप देख रहे हो कि आजकल भी कितने सुसाइडल केस हो रहे हैं कि यार मैंने लोन ले रखा है, आई डोंट नो हाउ टू पे इट बैक, अब मेरी जॉब भी चली गई है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि यार क्या फायदा लेके। यार अमन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप जैसी सोच आजकल की डेट में बहुत कम लोगों की रह गई है। हाँ। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो लोन लेना, अगर आप किसी कैपेक्स के लिए ले रहे हो, जैसे किसी घर के लिए ले रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है कि आप 50 साल मेहनत करके 50 साल के बाद घर बनाओगे, ठीक है ना, पैसे इकट्ठे करके। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं आज घर बना लूं, 50 साल तक पे कर दूं, अच्छा, जिसकी वजह से इसमें मैं एक 50 और साल चीज रह है, लूंगा। इसमें एक और चीज है, आप लोगों ने वो बुक पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल पड़ा है। हाँ, तो उसमें उन्होंने सबसे मेन बात यही कही है कि भाई घर बिल्कुल मत लो, आपकी जिंदगी उधारी की हो जाती है। तो बिल्कुल उस पे सही बात आपके क्या राय है आपकी, सीए है। यार साहब? घर यार घर लेना पता है क्या होता है? एनसीआर में लोग घर इसलिए लेते हैं बिकॉज वो ये सोचते हैं कि जितना मैं आज रेंट दे रहा हूँ, उतनी की अगर मैं ईएमआई दे दूं तो क्या बुराई है। अगर बंदा अपने घर में रह रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पीलीभीत में रह रहा हूँ, मेरा अपना घर है, मेरे को उसकी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है। अगर मेरे को यही रेंट देना पड़े और मैं सोचूं कि अगर मैं रेंट दे रहा हूँ, रेंट की जगह अगर मैं अपने घर की ईएमआई दे दूं तो वो ज्यादा अच्छा है। कि अगर मान लो मैं 30 साल अगर घर में रुका, रेंट दूंगा तो मेरे पास 30 साल बाद कुछ नहीं होगा, और अगर मैं ईएमआई दूंगा तो 30 साल के बाद मेरी अपनी एक प्रॉपर्टी तो होगी। तो इसलिए लोग घर लेने की सोचते हैं, जो मैं अभी तक समझा। छोटे शहरों में घर लेने की इसलिए नहीं सोचते हैं बिकॉज यहाँ पर रेंट वगैरह कम है, जो आपके ईएमआई से बहुत कम होता है। बड़े शहरों में क्या होता है, आपका रेंट इतना जाता है जो ईएमआई के इक्विवेलेंट और साथ में वो लॉयर का भी खर्चा, 100 दुनिया ध्यान की वो चीजें, सब एक्स्ट्रा होता है। लीगल अच्छा थिंग्स। हाँ, अच्छा, और एक और चीज एक रह चीज और गई कहना कि चाहूंगा, अगर ईएमआई अगर हम रखते हैं तो ईएमआई हमें इतनी रखनी चाहिए कि अगर हमारी 6 महीने की सैलरी भी ना आए तो हम कैपेबल हो ईएमआई पे करने के लिए। तो ईएमआई अपनी उतनी तो रखनी चाहिए, बिकॉज एक्सेप्शंस कभी भी हो सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के चक्कर में जो ये डिफॉल्ट होंगे, अल्टीमेटली इसका फर्क बैंक पे पड़ेगा, बिकॉज लेंडर्स जो है वो पैसे दे नहीं पाएंगे और बैंक्स के सारे यार पता है क्या, जब से एक तो डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद ये जो अभी बैंक डूबना, और देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, इससे मेरा जैसे गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ फोर्सफुली आपसे सारे पैसे बैंक में रखवा लिए, राइट? दिस इज हाउ व्हाट थिंग हैपेंड कि सारा दे वर फोर्सिंग अस टू कि सारा पैसा बैंक में रखो, घर पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हेन यू सी बैंक्स आर नॉट सिक्योर, तो थोड़ा सा मतलब भरोसा हिलता नहीं है। क्या लगता है तुम लोगों को? यार अब कहीं तो पैसा रखेंगे। अब देखो रिस्क तो हर जगह है। अगर मैं गोल्ड लेके घर में रख लूंगा तो चोरी का डर है, मैं अपने बैंक लॉकर में रख दूंगा तो जलने का डर है, वहां पे भी चोरी का डर है। तो सेफ तो देखो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रखो कि यहाँ भी कर दिया, इन केस अगर ये चला भी जाता है तो बाकी जो है उससे हम अपनी सेफ रहें। अच्छा अच्छा, अमन बहुत देर से अमन ने कुछ अच्छा, नहीं बोला। अमन ये बताओ आप। एक चीज चलो, जो कि भी हमने संकेत का शुरू क्वेश्चन है अमन विल आंसर। हाँ, क्योंकि हमने शुरू किया था उस चीज से कि कैसे हम 50,000 अगर अर्न कर रहे हैं तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप के स्टूडेंट ने ये चीज पूछा था। तो हमने शुरू किया था कि इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है आपके
मैनेजमेंट का, और फिर वहां से हमारा कॉन्वर्सेशन ड्रिफ्ट हो गया था दूसरी जगह पे। तो व्हाट फॉलोज द इंश्योरेंस और या फिर वो यार इन्वेस्टमेंट? इंश्योरेंस जैसे 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ द सैलरी शुड बी स्पेंड ऑन इंश्योरेंस। उसके Okay. बाद हमें अपने बेसिक नेसेसिटी के लगभग 40% या 30% एक्सपेंडिचर करने चाहिए। उसके बाद सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें सेव कितना करना है। लोगों को पहले की टेंडेंसी ये थी कि लोग क्या करते थे कि जितना पैसा कमा रहे हैं उसमें पहले सेविंग कर लेंगे, बचे हुए में स्पेंडिंग करेंगे। बट आज की Okay. टेंडेंसी जो है, जो बहुत गलत है, वो ये है कि आज पहले स्पेंड कर लेंगे, बचा हुआ सेव कर लेंगे, जो टेंडेंसी बहुत गलत है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि जितनी आपकी सैलरी है उसमें 30% मिनिमम आप एक सेविंग का निकाल दीजिए। बाकी 70% में आप अपनी स्पेंडिंग करिए। 70% को भी आप अपोर्शन कर सकते हैं कि आपने उसमें 10% अपना इंश्योरेंस पे निकाल दिया, लग्जरियस ट्रैवल, डाइनिंग आउट, इन सब पर आपने अपने 20 to 30% लगा दिया, रेस्ट आपने स्पेंडिंग पर निकाल दिया। अब अगर हम ईएमआई की बात करें, अब हम ईएमआई की अगर बात करें तो लोग क्या करते हैं कि अपना सैलरी का एक हैंडसम अमाउंट इन ईएमआईज में निकाल देते हैं। तो उनको दिक्कत तब आती है कि इनकेस अगर उनकी जॉब चली जाती है या कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो क्या होता है, कर्जे में आ जाते हैं। तो अपनी ईएमआई भी बंदे को लगभग 25% से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए कि इनकेस अगर मान लीजिए कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो सकती है तो दे आर कैपेबल टू पे द ईएमआई। इसको और बहुत अच्छे मैनर से करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज स्टेइंग इन गुड़गांव, ठीक है, या दिल्ली, आईटी सेक्टर में बंदा जॉब करता है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। उसका सैलरी मान लो 50,000 है, तो उसका रेंट हम लोगों ने सोच लिया कि रेंट उसका जनरली कितना जाता है गुड़गांव में रेंट? आप गुड़गांव में रहते हो, 15,000 अराउंड 10,000 10 to 15, हाँ 10 to 15 फॉर एग्जाम्पल। 50,000 में से हम लोगों ने 15,000 रुपए रेंट पे दे दिया। आगे बताओ क्या क्या करना है, खाने पे कितना लगेगा? यार अब ऐसा नहीं है, बजटिंग करते हैं, थोड़ा सा एक 50,000 बेसिक बजटिंग करते हैं। हाँ यार मैं वही बता रहा हूँ, अगर 50,000 वो कमा रहा है ना, हाँ तो फिर वो 15,000 के रेंट में नहीं रहेगा। वो 20% से ज्यादा रेंट में देना ही नहीं चाहिए, तो वो 10,000 के रेंट में रहेगा। उसको 10,000 के रेंट पे रहना चाहिए। रेंट शुड बी 10,000, है ना? 10,000 ठीक है। 15,000 ट्रेवलिंग और उसका लिविंग एक्सपेंसेस होगा जिसको वो अवॉइड ही नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, 15,000 आपका ये भी चला गया, ठीक है। बचा 25,000। 25,000 में उसको हर महीने 15,000 तो अर्न करना ही चाहिए। 30% जो आपको मैंने पहले बताया था। सॉरी मैं समझा नहीं, मैं क्या 50,000 में से 30,000 30% यानी 15,000 उसको सेव करना चाहिए, ठीक है। और बचा कितना? 25 वो हो गया, 10 ये हो गया, 35 वो 15 ये हो गया, 10 बचा। 10,000 में 5,000 should be a portion to insurance and rest for the traveling and other things like outdoor traveling or dine outs। नहीं तो फिर बचा क्या? उसके पास कुछ नहीं बचा। यार सैलरी में हमने सेविंग निकाल दी, इंश्योरेंस निकाल दिया, स्पेंडिंग निकाल दी, तो बचेगा क्या? नहीं सेविंग तो बहुत कम हुआ। सेविंग हमने जैसे 50,000 में से था, कितने रुपए का सेविंग किया हमने? 50,000 में से 15,000 सेविंग। दिस इज द मिनिमम सेविंग 15 के, ये मिनिमम सेविंग है। हाँ, अब इसमें भी डिपेंड करता है। अब जिसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होता है वो 15,000 भी नहीं बचाता, और जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता तो इसमें से भी वो 30,000 बचा जाता है। तो वो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा चलो, हमने ये किया व्यू 50,000 वाले पर्सन का। एक हम थोड़ा सा ज्यादा रिच वाले, थोड़ा सा बेटर कैटेगरी में 1 लाख वाले पे आ जाते हैं। 1 लाख पे हाउ वुड यू सजेस्ट कि उसको कैसे करके क्या करना चाहिए? और 1 लाख एक माइंडेड कि 1 लाख वाला बंदा सबसे पहले तो कार लेने का मन करता है उसे कि भाई मैं तो एक कार भी ले लूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताओ। और डू यू थिंक लाइक वन शुड बाय अ कार और नॉट इफ हिज सैलरी इज 1 लाख? यार कार आजकल तो वैसे बेसिक नेसेसिटी हो गई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको कार ज्यादा जरूरी हो जाती है, बिकॉज उसमें क्या होता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो आपकी होती है वो डबल हो जाती है। और जब तक आप बैचलर हो, मुझे डबल कॉस्ट सेव कर सकते हो। हाँ, और अगर जब तक आप बैचलर हो तो कार की जरूरत नहीं है, स्पेशली एनसीआर में। बिकॉज एनसीआर में हमें हर तरीके की फैसिलिटी है, हमें कैब्स मिल रही है। कार में हुआ क्या, हमें पार्किंग भी देना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी भी है, और उसका इंश्योरेंस भी है, उसका मेंटेनेंस भी है, उसका पेट्रोल भी है, सब कुछ है। बट अगर आप कैब यूज करते हो तो आपको उसका रेंट बहुत कम पड़ता है। तो अगर आप बैचलर हो तो आई विल नॉट सजेस्ट, एनीबॉडी विल नॉट सजेस्ट टू टेक अ कार इन द एनसीआर। और अगर आपकी शादी हो गई है देन यू शुड plan to take a car after 2.5 years or after having a baby।
ओके, तो जैसे 1 लाख का हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 30,000 रुपए तो उस बंदे को सेविंग करना ही करना है, ठीक है। तो अब उसके बिल्कुल। पास 70,000 बचा हुआ है, 70 को 70,000 को हमें कैसे डिवाइड करना चाहिए, आप बताओ सबसे बेस्ट मैनर। और आई वुड आस्क लाइक कि सारे लोग इसमें अपना व्यूज दे सकते हैं, बताओ सजल आप शुरू करो। 70 में 20,000 की तो उसकी EMI होनी चाहिए। 20,000 की EMI होनी चाहिए, कंपलसरी है, व्हाई? यार कंपलसरी, अब जो 1 लाख कमा रहा है तो उसकी कुछ ख्वाहिशें भी होंगी कि उसको घर भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, तो कम से कम 20 to 30,000 की तो उसको इसमें से EMI वो निकालेगा ही निकालेगा, जो निकालना भी मतलब चाहिए। EMI मतलब वो घर के लिए करे या कार के लिए करे, क्या चीज के लिए करे, व्हाट आर यू सेइंग? दोनों की मिलाकर Depend on- 25,000। मतलब यू थिंक इफ अ पर्सन इज अर्निंग 1 लाख तो उसको ही शुड बाय अ होम? यार अब वही डिपेंड करता है ना बंदे के, कोई बंदा लेना चाहता है या नहीं चाहता है, नहीं, या अब फिर थोड़े टाइम इसीलिए के तो लिए। हम एक एक्सपर्ट एडवाइस हम लोग ले रहे हैं ना कि पीपल आर कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए। आप लोग अपना सजेशन दो मुझे, सब लोग तीनों लोग अपना सजेशन दो कि क्या उसमें बेटर ऑप्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। यार पहले आप इस क्वेश्चन में, जैसे 1 लाख अगर बंदा कमा रहा है तो मुझे उसको ये बताओ कि वो बैचलर है या शादीशुदा है। चलो मान लो बैचलर है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक आप वन ऑफ इसमें माय ये भी ऐड करो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। फैमिली फैमिली, को और हाँ साइड ये कर सब। दो, फैमिली को साइड कर दो। यार डिपेंड यार नहीं नहीं, अमन, फैमिली पे ये डिपेंड सारे करता है। फैक्टर्स अगर बहुत आपके इंपॉर्टेंट होते फादर हैं। के अच्छा, पास आपके फादर के पास ऑलरेडी अगर पैसे हैं तो आप क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, अगर नहीं है देन वो बंदा चाहेगा कि यार फर्स्ट चलो फॉर फर्स्ट एग्जांपल प्रायोरिटी मेरी है कि द मैं पर्सन इज एक नॉट टैक्स दूं। एसोसिएटेड विद द फैमिली, मैं कह रहा हूँ हाँ फॉर एग्जांपल पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड विद द हाँ फैमिली, हाँ। और अभी वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ माय वन ऑफ माय हम्म, स्टूडेंट। तो ओके। उसका क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। तो लाइक लाइफ स्किल कोचिंग के लिए एक पर्सन मेरे पास आया था, लास्ट ईयर की बात है। तो संकेत रिमेम्बर्स कि हम लोगों ने उसके साथ काफी सारा चीज हम लोग हेल्प कर रहे थे उसे, बट ही वॉज अर्निंग अराउंड 1 लाख और उससे थोड़ा सा ज्यादा। बट उसने एक कार भी खरीद ली सियाज, उसका वो देता था, इंश्योरेंसेस थे उसका, देता था EMI, रेंट पे रहता था, रेंट का उसका खर्चा। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो वो वो इतना स्लेव हो गया था उस सिचुएशन का कि वो जरा सा भी मूवमेंट नहीं कर सकता या फिर एफर्ट नहीं कर सकता कि उसकी जॉब अगर अनफॉर्चुनेटली रिस्क में आती है तो उसका पूरा दुनिया हिल जाएगी, ऐसा सिचुएशन था। यार देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। कि मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले तो हमें कुछ फंड ऐसा रखना चाहिए। देखो प्राइवेट जॉब में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 6 मंथ्स की लिक्विडिटी तो आपके पास होनी चाहिए, कि ठीक है, इनकेस अगर आपके पास जॉब ना रहे तो हाँ, आप 6 मंथ सर्वाइव कर सको, ठीक है ना। और अपने खर्चों को इस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाना चाहिए कि अगर सैलरी 2 दिन भी लेट आ जाए तो आपको किसी से लेना पड़े, ओके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, अगर वो कोई भी EMI चला रहा है तो वो 25% ऑफ द सैलरी से ज्यादा ठीक नहीं है। होनी चाहिए। 25% मतलब ये इसी में कह देते हैं हम लोग सैलरी से 20% हम लोग मान लेते हैं, एक सेफ गेम है EMI का। और एक चीज मैं इस चीज में ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती जब आप 20 या फिर 30% आपका सेव करते हो। लोग हमेशा सोचते हैं जब आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तब आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, बट अगर आपके पास थोड़ी सी भी सेविंग है ना तो आपकी लाइफ कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहती है। आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आपके दोस्त बोलते हैं कि आप कहीं फैंसी जगह पे जाएं हॉलीडेज के लिए या फिर कहीं पे, यू डोंट हैव टू थिंक एज मच, यू हैव ऑप्शंस देन। अगर आपने थोड़ा थोड़ा किया है, आपको हमेशा एकदम लॉटरी जीत के बहुत बड़ा करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी सेविंग्स है, और वो बहुत पावरफुल चीज है और आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज नहीं समझते हो तो आप यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ग्रेट थिंग एंड द ऑड्स ऑफ यू बिकमिंग अ बिलियनियर आर वेरी लो। सो मेक मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव, बिकॉज ये पॉइंट लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा इन्वेस्ट सेविंग नहीं करते तो पूरा ही नहीं करते कि यार थोड़े से मेरे क्या होगा, तो मैं क्या करता ही ही नहीं। होगा, हाँ। यार देखो, नहीं अमन, एक एक होता बात ना, एक हमने हाँ, शुरू में हमने पढ़ा था बचपन में कि छोटे छोटे कंकर से ही घड़ा बढ़ता है। हाँ, टेक तो केयर ऑफ स्मॉल अगर थिंग्स, कोई, बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। यस, तो जैसे कि अब मैंने बताया कि अगर जैसे किसी की आदत नहीं है कि मैं एक बार में 30% अपना सैलरी का रोक पाऊं, उसकी आदत नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे RDs, रिकरिंग डिपॉजिट्स या SIPs, जो समय भी डिस्कस हुआ था, वो अपनी खुलवा लेनी चाहिए। बिकॉज जो 1 लाख रुपए बंदा कमा रहा है उसको 1000 अच्छा, या आरडी 2000 या आरडी कौन सा वाला होता है और एफडी क्या होता है? एफडी इज ए फिक्स डिपॉजिट कि मैंने 1 लाख रुपए मैंने बैंक को दे दिया, बैंक उस पे 5% या 6% मुझे इंटरेस्ट देता रहता है, दैट इज एफडी। हाँ, आरडी वो क्या होता है? मैच्योरिटी
आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जैसे एसआईपी होती है, तो एसआईपी क्या होती है, हर मंथ हमको देनी पड़ती है। तो बैंक के सेंस में रिकरिंग डिपॉजिट होती है जो मेरी हर मंथ की 1 तारीख को मेरे अकाउंट से कट जाएगी और वो इन्वेस्ट हो जाएगी। Aman, एक second. I have to go. I'll be back. But I want to ask one question कि अगर कोई रिटायर होता है इस ड्यूरेशन में, ये कोरोना के टाइम में, तो और उसको लाइक दैट पर्सन गेट्स अमाउंट ऑफ 80 to 90 लाख, ऐसा कुछ, मतलब बड़ा अमाउंट किसी भी वे से अगर आता है, आपकी प्रॉपर्टी बिकती है, फिर कुछ भी होता है, तो व्हाट दैट पर्सन शुड डू, या एक कोरोना टाइम पे या फिर इन जनरल, लाइक हाउ शुड दैट पर्सन मैनेज? और आई विल बी बैक. दिस इज द क्वेश्चन. And also we have to take the students questions जो थोड़े से, तो फिर क्या ये लोग क्या करते थे, सेविंग कर लेते थे. राइट, पहले क्या होता था, प्राइस होते थे फ्लक्चुएट इतने नहीं करते थे. सपोज 10 years बैक एक बंदे ने एक अपनी घर परचेज किया ओवर अ लोन, उसने लोन लिया और एक घर परचेज कर लिया इन नोएडा. एट द टाइम ऑफ परचेज उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 30 lakhs. ही बॉट अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ 25 lakhs. 5 lakhs उसके पास मनी थी, उसने लोन बोरो किया एंड परचेज कर लिया. अब उसके उस समय क्या था, वो बिल्डर्स लोन था, तो बिल्डर उसको कंप्लीट कर रहा था, एग्रीमेंट हो गया था, उसने एडवांस दे दिया था. लेटर ऑन क्या हुआ, 10 साल बाद जब वो कंप्लीट हो गया, उसने रजिस्ट्री कराई उसकी. ठीक है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री उसकी कॉस्ट हो गई 60 lakhs. अच्छा, जस्ट डबल विद इन 10 years. अब अगर सपोज अगर वो पहले सेविंग करता, सपोज पहले से पुराने लोगों की टेंडेंसी होती थी कि पहले मैं सेव कर लूं, मैं लोन ही लूंगा बैंक से. उसने क्या करा, 10 साल सेविंग करेगा, अगर उसने 1 लाख रुपए भी हर साल बचाए तो वो डबल नहीं होगा विद इन 10 years. मैक्स टू मैक्स 1.4 टाइम ऑफ अ. नहीं, तो यू आर सजेस्टिंग कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए लोन लेके? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए. अगर लाइक आप जॉब कर रहे हो, आपको घर परचेज करना है, तो अब ये बात सोचो कि पहले मैं सफिशिएंट अमाउंट, हैंडसम अमाउंट अपना सेव कर लूं, देन मैं घर परचेज करूं. यू कैन गो फॉर ईएमआई आल्सो. हाँ, तो घर वाले ऑप्शन में 2 चीजें हमारी साथ के साथ हो रही हैं. एक तो आपका रेंट भी साथ के साथ बच रहा है, और दूसरे एंड से आप एक और चीज बचा रहे हो कि आपका सेव भी हो रहा है. वो एक सेव, आपकी सेव चीज है, और इवेंचुअली आपका प्रॉफिट का वेट भी बढ़ता है, वो भी मैं सेव कर रहा हूं अपना. जैसे अमन, मैंने आपको बोला था कि 30 years की जॉब के बाद, रेंट देने के बाद आप पे कुछ नहीं बचेगा, और अगर आप हाउस में इन्वेस्ट करोगे तो हैंडसम प्रॉपर्टी आपके पास होगी. एंड देयर इज आल्सो इनकम टैक्स बेनिफिट इन दिस. अच्छा, यस, इनकम टैक्स में भी आपको रिडक्शन होती है. आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को एंड प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपकी इनकम में से भी कम होता है. तो देयर इज अ डबल बेनिफिट, लाइक इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी मिलेगा आपको अगर मार्केट, बिकॉज इन मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटीज में जो प्राइस है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं. लास्ट फ्यू इयर्स में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही हाई हुए हैं. तो अब अगर आप अभी सोचोगे कि यार अभी मैं सेव करता हूँ, मैं 10 से 15-20 साल बाद परचेज करूंगा, तो उस समय उसकी कॉस्ट इतनी होगी कि इवन आपको तब भी लोन लेना पड़ जाएगा. तो व्हाई डोंट आज क्यों नहीं लेते आप? अच्छा, रादर देन अगर आप सोचो 10 से 20 साल बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में घर परचेज करूंगा, तो डू यू थिंक आप 60 years नहीं, मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ढंग से समझ पा रहा हूँ. ये वाली बात मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली समझा हूँ. बट जैसे वही चीज जो रिच डैड पुअर डैड वाली जो मेरे दिमाग में चलती थी और चलती है भी अभी भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉरेन के हिसाब से ये चीज आई बिलीव की बिल्कुल नॉन वैल्यूएबल टाइप की चीज है. यहाँ इंडिया में थोड़ा सा चीजें डिफरेंस है. लाइक, डू यू एग्री ऑन दैट? नहीं, सॉरी, जैसे उसने उस बुक में जैसे बोला था, सजल ने शायद क्वेश्चन समझ लिया. सजल, व्हाट डू यू वांट टू से? यार डिपेंड करता है. अब जैसे मान लो मैं क्या नाम होता हूँ, मेरा एक घर यहाँ पर है और मैं अकेला हूँ अपने मदर फादर के लिए, और मैं एनसीआर में हूँ, और मेरा ये है कि मैं थोड़े टाइम जॉब करूंगा, उसके बाद अपने घर वापस आ जाऊंगा. तो डेफिनेटली यार मैं अपने घर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. और घर जैसे उसमें है, उनमें ये है कि घर आपको लेना ही नहीं चाहिए. बट वहाँ की टेंडेंसी और यहाँ की टेंडेंसी में बहुत डिफरेंस है. यहाँ अगर आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको घर नहीं लेना चाहिए, मैं ये कहता हूँ अगर आपको घर ले रहे हो तो आप इतना बड़ा मत लो कि उसमें इतना इन्वेस्ट कर दो. क्योंकि आज हम जो भी लोग हैं वो अपने घर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दी, उसमें 2 करोड़ 2.5 करोड़ का इंटीरियर बनवा दिया. तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि घर में आप, क्योंकि घर क्या होता है, घर हमारी डेड एसेट होती है. हम उसमें कितना भी पैसा डाल दें, वो हम ना उसे कभी बेच सकते हैं, हम उसे कभी बेचना नहीं चाहते. तो घर हमें हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए. हमें इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए कि हमें उसकी मेंटेनेंस के लिए भी अलग से पैसा खर्च करना. तो घर जरूरी है, लेकिन घर ऐसा ना लें कि उसके वजह से हमें
जिंदगी भर अच्छा, और ही खर्चा करना है। कमिंग बैक, आई एग्री ऑन योर पॉइंट। अब ये चीज मेरे भी दिमाग में थोड़ा क्लियर हुआ इस चीज से। अच्छा, हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे कि 30,000 उसका हमने वो कर दिया था सेविंग वाला, 20,000 हमने उसका ईएमआई पे ले आए थे, जो 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। अब 50,000 उसके पास बचा है, तो 50,000 में अब वो क्या करे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से। सेविंग 30,000 की हो गई है, अब उसका खर्चे को थोड़ा सा हम लोग बजटिंग कर रहे हैं इस मोमेंट पे। यार अब इसमें या तो आप किसी एक को लाइव एग्जांपल लो कि इसकी जगह अगर ये हो, अगर आप जैसे मेरे को लाइव एग्जांपल लो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल बना रहा हूँ। एक पर्सन का नाम है एक्स, ठीक है, ही वर्क्स इन, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं उसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहा हूँ। तो दिस पर्सन अर्न्स अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। अब 1 लाख रुपए कमाता है, अभी वो उसको फैमिली से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फैमिली से उसको कर दो साइड। अब जॉब उसका है, तगड़ा जॉब है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, उसको जो भी करना है, उसको फैमिली से हेल्प नहीं है उसे, ठीक है। हाँ, अब वो ही सेल्फ सफिशिएंट, ही अर्न्स लाइक 1 लाख पर मंथ, और ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट टू डू, ही विल डू बाय हिज ओन, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द फैमिली, ठीक है। या देखो, हर बंदा, जो भी बंदा कमाता है ना, उसका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है कि उसे आगे क्या करना है, उसके बेसिस पे वो अपने प्रेजेंट में डिसीजन लेता है, ठीक है। अब जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसको लगता है कि उसे फ्यूचर में घर लेना है, तो वो बाद में जो लेगा वो आज ही तो क्यों नहीं अभी स्टार्ट ले ले, कर सकता? चलो मान लिया वो उसको वो ले ले अभी घर, ठीक है, देन नाउ फिर उसकी ईएमआई देता रहे। ये एक और संकेत ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी के पास अभी कोई रिटायरमेंट हुआ इस टाइम पे, कोरोना टाइम पे, तो उसके पास 70-80 लाख या 90 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उस पे उसको अभी क्या करना चाहिए? व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट? कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे करें? अभी तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो उसको सिक्योर करके कहीं लोअर सिक्योरिटी में डाल दे, लाइक एफडीआर में। बिकॉज अभी कोरोना का इम्पैक्ट कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, नोबडी नोस। कितने भी कोई कंसल्टेंट हैं, वो कितना भी कह दें कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। नोबडी हैज प्रेडिक्टेड दैट कोरोना विल टेक अ वास्ट लुक इनटू द कंट्री। सो अभी तो मैं यही कहूंगा कि जब तक ये सब कुछ सही नहीं हो जाता, जब तक अपना पैसा सिर्फ सिक्योर रखो, सेव बैंक में डाल के रखें, जो बैंक में आपको मिला है वही पैसा आप लोगों ने रखा हुआ है, उसको कुछ ना करें। संकेत, योर आंसर वाज कि अभी कुछ भी करना नहीं चाहिए अगर आपको रिटायरमेंट का पैसा मिला है, और वो आप सेव करके रख लो, क्योंकि अभी बहुत फ्लक्चुएशंस है मार्केट में, कोई भी चीज श्योर नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना, और बस हाँ, अभी कीप इट इन बैंक्स। और बैंक भी है, बैंक भी किसी अच्छे बैंक में रखना चाहिए, और उसको अगर कोशिश करो तो मल्टीपल बैंक में ही रख दो, बिकॉज अभी महाराष्ट्र का पीएमसी बैंक था, तो बैंक का भी कोई भरोसा नहीं है। तो अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना प्रिजर्व करके रख लो, वही आपका सबसे बड़ा है। क्या बोलते हो? यस बैंक में करते हैं, थोड़ा सा पैसा डालते हैं। यस बैंक करो यार। यस बैंक ने जिसने शेयर्स भी ले रखे थे ना, वो भी बेचारे डूबे पड़े। देखो, एक पता है क्या, वो उनका डूबना पक्का हो रहा था क्योंकि उसका नाम था यस, तो कोई आपको लोन देगा, वो नो तो कर नहीं सकते थे, उनको अपने नाम पे जाना था, तो लोन ज्यादा हो गए। उन्होंने सबको लोन दिया। मेरे ख्याल से जितने भी डिफॉल्टर हैं हमारे, चाहे भूषण स्टील हो, चाहे हमारा किंगफिशर एयरलाइन हो, सबने उसको यस बैंक को लोन दे रखा था। IIFL सबने दे रखा था, ले रखा था यस बैंक से लोन। सही है। इसीलिए कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में भी अगर आप लगा रहे हो तो किसी एक सिक्योरिटी में मत लगाओ, मल्टीपल में लगाओ, बिकॉज कुछ नहीं पता है कि कब क्या हो जाए। बिकॉज इनसाइडर न्यूज तो हमें पता ही नहीं होती, हमें तो वही न्यूज दिखती है तो वो पब्लिश करते हैं जो दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, स्मॉल टाउन में अगर कोई पर्सन, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना है किसी पर्सन को, तुम लोगों ने देखा होगा कि जनरली बहुत कम लोग ही हैं जो शेयर मार्केट वाले चीज में घुसते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओल्ड स्कूल कहावत है कि भाई ये तो सबसे बड़ा जुआ है शेयर मार्केट, तो जुआ खेलना गलत बात होती है, तो इसलिए कोई जुए में घुसना नहीं चाहता। अमन, ये लोगों का जो पर्सपेक्टिव है ना कि शेयर जुआ है, ये बहुत गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों गलत है। शेयर्स में दो तरीके से डील होते हैं। एक होता है कि मैंने वर्चुअली सुबह शेयर खरीदे और शाम को वर्चुअली बेच दिया, उसका नेट सेटलमेंट पर खेला। सपोज मैंने 1 लाख रुपए के रिलायंस, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीदे
शाम को मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए के बेचूंगा, आप चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मैं उसका पैसा या तो लूंगा या दूंगा। तो वो होती है सट्टेबाजी। ठीक है ना, जिसकी वजह से शेयर बदनाम है। अगर आप शेयर्स को लेकर अच्छी कंपनीज के और होल्ड करके रखते हो कि मैं फ्यूचर में निकाल लूंगा, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जितने भी लिटरेट लोग हैं जो समझते हैं शेयर्स के बारे में एक्चुअल, वो ऐसा ही करते हैं। और जो लोग डूबते हैं ना, आपने सुना होगा कि शेयर्स में डूब गए, तो डूबते वही लोग हैं जो सट्टेबाजी इस तरीके से करते हैं, या फिर सारे मनी एक ही जगह लगाते हैं। जैसे जिसने यस बैंक की ही सारे सिक्योरिटीज खरीदी होंगी तो वो डूब गए, या किसी ने कुछ ऐसा करा होगा कि सुबह लिए शाम को बेच दिए, वो डूब गए। लेकिन अगर आप सोचोगे अच्छी कंपनीज में लगाए, मल्टीपल सिक्योरिटीज में लगाए, तो वो कभी डूबेंगे नहीं, उनका प्रॉफिट और लॉस तो हो सकता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक में मैं समझ गया ये वाली चीज। मैं अब टॉपिक किसी और जगह ले जाना चाहता हूँ। टॉपिक में ले जाना चाहता हूँ कि लोकल तरीकों से लोग पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि मैंने अपने एरिया में आसपास बहुत देखा, बहुत अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द गुड वेज जो पैसा कमाया जा सकता है? मैं इसमें आई वांट टू इंक्लूड द फार्मिंग सेक्टर एज वेल। या छोटे शहरों में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं तो वो होते हैं कि आस पड़ोस की लैंड ले लो, शहर के थोड़े बाहर की, कि अगर कभी डेवलप होगा तो उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। दूसरा, मार्केट की कोई शॉप देके उसको रेंट आउट कर दो, एक ऑप्शन वो भी होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनको पास फंड्स पड़े हुए हैं तो वो अपने बिजनेस का एक और सेगमेंट बना देते हैं। लाइक सपोज एक शॉप और खोल दी, ठीक है ना, या अगर उनका बिजनेस रिटर्न अच्छा दे रहा है तो वही पैसे को बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देते हैं। तो सबका अलग अलग सोचना है, सब लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक घर रेंट से देते हैं, रूम्स निकाल के या फिर फ्लैट्स वगैरह लेके, जिस एरिया में कॉलेजेस वगैरह है, वो भी काफी अच्छा सोर्स है। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद आजकल पीजी पर देना भी बहुत अच्छा सोर्स है। अब मैं सृजन से थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सृजन, एक बात बताओ कि हम लोग को एक पर्सन है, उसको एक नया कंपनी खोलना है। जैसे अब एग्जांपल में दो एग्जांपल दूंगा, दोनों का आपको मुझे बताइएगा कि जैसे एक सिर्फ 2 लोग हैं, उनको एक लीगल मैनर में बेसिकली गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है और उसको एक अपना कंपनी खोलना है, उसमें बैंक अकाउंट वगैरह भी उसको खोलना है कंपनी के नाम से। तो उसको कैसे करके अपना मतलब क्या, किस वे में आपको ट्रस्ट बनाना है, सोसाइटी बनानी है, क्या करना है, आप प्लीज मुझे बताइए। ओके, पहले आप कंपनी या कोई फॉर्म, कॉर्पोरेट फॉर्म में जाना चाहते हो तो आपको पहले पर्पस पता होना चाहिए, आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो। आप अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए जा रहे हो तो आप मेनली आप कंपनी, कॉर्पोरेट फर्म और पार्टनरशिप फर्म के थ्रू जाओगे। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा एक बार मैं इसको नोट डाउन भी कर लूं, क्योंकि मुझे इस चीज पे जो हम लोग आज का डिस्कशन हो रहा है इसका मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के अपने ग्रुप में भी डालना है। तो थोड़ा सा एक बार आप फिर से, कैन यू प्लीज रिपीट इट? ओके, मैं कहूँ कि जो भी बंदा है अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मोटिव पता होना चाहिए कि उसका मोटिव क्या है, कि वो किस स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो अगर इन प्रॉफिट मोटिव में जाना चाहता है तो उसके 3 फॉर्म होते हैं, या तो कंपनी के थ्रू जाएगा, या पार्टनरशिप फर्म, और या प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर उसको स्मॉल लेवल पे तो मोस्टली लोग पार्टनरशिप के बाद आपने क्या बोला? प्रोप्राइटरशिप फर्म, सिंगल फर्म, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ओके, yeah. So there are 3 level of formation of legal structure. तो अगर आपका जैसे रेस्टोरेंट आप खोलते हो, या फिर आप सीए या सीएस कंसल्टेंसी आप खोल रहे हो, या कोई भी तरह की कंसल्टेंसी है, तो मोस्टली लोग जब स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म से करते हैं, बिकॉज द प्रोप्राइटरशिप फर्म इज द सिंपलेस्ट वे टू ओपन अ योर स्टार्टअप। तो उसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन करने के लिए आपका सिंपली हर जगह रजिस्ट्रेशन परमिशन होता है। आप वैसे मेरे इतनी नॉलेज मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में नहीं रखता हूँ, मेरा नॉलेज कंपनी लॉ में है कि आप अगर कंपनी फॉर्मेशन है तो आप कैसे करोगे। सजल, आप खोलते होगे कंपनी, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सजल बेटर बता सकते हैं। क्या एक बार क्वेश्चन रिपीट करो? मुझे ये बताना है, जैसे एक प्रोप्राइटरशिप की जैसे बात बताइए कि एक पर्सन अपना कंपनी ओपन करना चाह रहा है, तो उस मतलब प्रोप्राइटरशिप के थ्रू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस पर्सन को? बिजनेस ओपन कर रहा है वो, यार बिजनेस ओपन करना है तो उसको क्या होता है कि एक अपना इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बेसिकली उसे अपना पैन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि
अगर वो ट्रेड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको GSTIN नंबर लेना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा, तो GST के उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना जैसे पड़ेगा। जैसे उसके बाद मैं इसके 2 एग्जांपल आपसे पूछूंगा, उसको मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे मैंने एक जिम खोल लिया, मैं मालिक हूँ ठीक जिम है, का, ठीक है, तो मुझे ठीक है, मतलब एक नंबर में काम करना है, ठीक है, मतलब आई डोंट ठीक वांट है, टू डू इट इन ए जैसे करके मैं ब्लैक में सारा कमाई ऐसे करता रहूं, तो मुझे एक नंबर में ठीक है। जेन्युइन तरीके से करना है, तो मैं प्रोपराइटर होऊंगा जिम का, तो फिर मैं कैसे करके क्या करूं मैं उसके लिए? यार अगर आपको एक नंबर में करना है हाँ। तो दो चीजें हैं आपको। अगर अगर एक नंबर में करने के लिए आप क्या समझते हैं कि अगर आपको एक नंबर में बिजनेस करना है तो इट मींस आपको टैक्स देना है। नहीं, टैक्स मैं आपको मेरा हाँ डायरेक्टली, टैक्स देना है, मेरा मतलब ये है कि मैं उसका कम से कम अकाउंट तो खोल पाऊँ बैंक में उस चीज के नाम का। हाँ, प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आपको अगर खोलना है तो आप उसका एक तो फर्म का नाम जो रखेंगे, ठीक है हाँ। ना, उसके नाम से आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। जितने भी उसकी फीस वगैरह आती है वो आप बैंक से लें। दूसरी चीज ये है कि जितना भी आपकी फीस आ रही है उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए और उसकी ITR फाइल होनी चाहिए कि अब आप आपने इससे यहाँ पे इतना आप 2 कदम आगे बढ़ गए। जैसे अभी मैंने प्लान हम्म, किया है, मैं जिम खोल रहा हूँ, मैंने अपना इक्विपमेंट लाके रख दिए, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को पास तो कुछ है ही नहीं अभी कहानी, तो मैं कैसे बैंक से अकाउंट कैसे खोल लूंगा? मुझे तो कोई बैंक तो कागज मांगेगा मुझसे, या उस जिम का, या पैन इसको बैंक नंबर या कैसे कुछ। बनाएगा उस चीज शुरू का? क्या करना है तो मुझे, बेसिक स्टेप अब बताओ। आप जैसे ABC। आप अमन अमन नेगी हो, हाँ। ठीक है, आपको अपना जिम खोलना है तो हम्म। जिम खोलने के लिए आप अपना प्रोप्राइटरशिप में कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आपको GST में करवाना है, अगर मान लो इनकेस अगर आपको उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वरना आपको अपने फर्म का पहले फर्म का नाम डिसाइड करना पड़ेगा और उस पर इसको पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। पैन नंबर आपने एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा, उसके लिए, ओके। हाँ, तो एक आपके पास आइडेंटिटी हो गई कि आपका जो जिम है वो इस नाम से है और वो इनकम टैक्स में रजिस्टर हो चुका है। फिर ठीक है। उसके बाद आप उस पैन के बेसिस पर उसी के नाम से अपना बैंक अकाउंट नंबर खुलवा लोगे। और पहले 3 साल तक कोई टैक्स नहीं भरना है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एज पर 3 साल तक टैक्स नहीं भरना। ऐसा कुछ नया रूल है ना If कि you नए स्टार्टअप्स को यार पहले 3 साल तक टैक्स नहीं भरना है? यार ये चीज मेरे को एक बार थोड़ा देखकर बतानी पड़ेगी कि इसमें भी सारे स्टार्टअप्स की बात नहीं है, उसमें भी कुछ टर्नओवर ओके, बेस्ड होता है कि अच्छा। जो इतने टर्नओवर का काम कर रहे हैं तो उनके लिए एग्जम्पशंस हैं, तो वो चीज ओके, आपको देखकर बतानी अच्छा, पड़ेगी। जैसे आप मुझे स्पेसिफिक हम लोगों के काम के हिसाब से बताओ। जैसे हमारा ट्री ऑफ विक्ट्री है, तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम जैसे वी टेक पेमेंट्स, ठीक है, अभी हम लोग ठीक है, हम पेमेंट नॉर्मली लेते हैं, तो अब इस चीज आपका के क्या है? पेमेंट, ट्री ऑफ विक्ट्री जो हमारा लाइफ स्किल कोचिंग है, ठीक है, अच्छा, तो वी गिव सेशंस, वी गिव थेरेपीज, व्हाटएवर, राइट, काउंसलिंग ठीक करते है। हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? मतलब आपके आपके राय में क्या है, प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए या पार्टनरशिप करना चाहिए? बिकॉज वी टू आर इन्वॉल्व, मी एंड संकेत, वी बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस, तो क्या करना यार चाहिए? आप अभी इनिशियल लेवल पर हो तो प्रोप्राइटरशिप ज्यादा अच्छी है। लोग कंपनी इसलिए बनवाते हैं ताकि लोगों का उस पर ट्रस्ट रहे और उस चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट हो। ओके। प्रोप्राइटरशिप में कोई एक्ट नहीं होता है, हाँ। पार्टनरशिप में भी कोई एक्ट नहीं होता है, उसमें दोनों की विल लिखी होती है जो पार्टनरशिप हाँ। डीड में लिखी होती है। तो ओके। अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपका वैसे ही चल रहा है, मतलब अगर हाँ। आपको ऐसा नहीं कि लोग अट्रैक्ट कंपनी के नाम से होकर आएंगे, तो आप हाँ। प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बेसिस पर ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और जैसे जैसे वो एक्सपेंड होता जाता है और आपको मल्टीपल जगह पर जाना है अपना बिजनेस को लेकर, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ कंपनी। तो ठीक है, तो पार्टनरशिप हम लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे और संकेत को पार्टनरशिप का डीड बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ, पार्टनरशिप का डीड। वी विल जो भी होता है वो हम आपके पास सीए के पास आए कि आपने भाई हमारा ये नाम है और इसके हिसाब से एक हमारा पार्टनरशिप का आप वो सिस्टम बना दो, राइट? हाँ। लेटर आप ही बनाते हो ना, सीए ही बनाता है? नहीं यार, ये वकील लॉयर करते हैं, ये लॉयर बना ऑथराइज्ड होता है, लॉयर लॉयर करते से? हैं। यस, अच्छा, मुझे अपने यस। पापा से बनवाना पड़ेगा। हाँ। लॉयर क्या आप ये समझ अभी सकते हैं, सिंपली फॉर्मेट होता है, अभी आप उसे टर्म एंड कंडीशन अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ। अब ये पहले की बातें होती थी कि लॉयर कर रहा है या कोई सीए कर रहा है, हाँ। आप हेल्प ले सकते हो किसी सीएस लॉयर की, बट यू कैन इजीली चेंज द टर्म एंड यार कंडीशन एट पर योर ओन कन्वीनियंस।
वैसे जो लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, उनको ये आइडिया होता है, जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह या फिर जो भी इस तरह की डीड्स बनवाते हैं, उनके पास पूरा फॉर्मेट होता है। आप जो डिटेल देंगे वो उसमें एंटर करके पूरी डीड बना देंगे। चलो फॉर्मेट फॉर्मेट बना दिया, एक हम लोगों ने विल टाइप का बना दिया कि भाई हम लोग ऐसे ऐसा करके हम लोग जितना भी पैसा आएगा हम लोगों ने बराबर बराबर बांटेंगे, फॉर एग्जांपल, राइट? ऐसा करके हमने एक बना दिया। अब वो हमारा बन गया। अब वो चीज हमने एक, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टैम्प पेपर पर लिखवा के ऐसे करके बन गया। अब वो मुझे रजिस्टर कौन सी जगह जाके कराना है? सोसाइटी दफ्तर जो होते हैं, सोसाइटी ऑफिस, या कहाँ पे रजिस्टर? नहीं, वो मेरे ख्याल से वकील कहीं जाकर आप नोटराइज करवा दोगे। चलो नोटराइज करा दिया, ठीक है। बस, बाकी कहीं रजिस्टर नहीं होगा। अच्छा, पार्टनरशिप मेरे कहीं रजिस्टर नहीं हुई, मैंने वो करा दिया। अब ये बताओ मैं उसके पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करूंगा? पैन कार्ड के लिए आप अपने पार्टनर्स के नाम वगैरह जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका एक फॉर्म आता है, आई थिंक 49A आता है। उसमें आप अपने फर्म का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में डिटेल देंगे, अपने लोग अपने दोनों की आईडी वगैरह देंगे, उसके बेसिस पे वो आपको पैन अलॉट कर देंगे। ओके, ठीक है। इट मींस योर फर्म विल गेट रजिस्टर्ड इनटू इनकम टैक्स। ठीक है, अब पैन आ गया, उसके बाद मेरा अकाउंट खुल सकता है उस कंपनी के नाम। अब आपका अकाउंट खुल जाएगा। मतलब मेन बात है अपने पास पैन कार्ड होना चाहिए अकाउंट खोलने। मतलब आपको वेरियस जगह पर, अब जैसे कंपनीज है तो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए उनका एक्ट है, तो आपको एक्ट में जाकर पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर आपको डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा, पैन लेना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर जीएसटी लगता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रोप्राइटरशिप जो होती है, प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, केवल आपको पैन लेना पड़ता है, जीएसटी अप्लाई होता है तो जीएसटी आई लेना पड़ता है। इन डॉक्यूमेंट को देके अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा ना बैंक में अपना फर्म के नाम से। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि कितने तक का स्लैब होगा जिसमें मुझे इनकम टैक्स मेरा नहीं पड़ेगा? यार इसका स्लैब जो है वो करेंटली 5 लाख है। अगर आप 5 लाख तक अर्न कर रहे हो तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। 5 लाख टू 10 लाख अगर जा रहे हो तो 20% टैक्स लगेगा, 5 लाख से ऊपर जो भी इनकम है। और अगर 10 लाख से ऊपर जा रहे हो, 10 लाख से ऊपर जितना भी आता है तो 30% टैक्स लगेगा। अच्छा, उसके बाद 30% टैक्स। ये स्लैब इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है, नॉट इन पार्टनरशिप। अच्छा, इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप मुझे बताओ जरा पार्टनरशिप पे क्या होगा? पार्टनरशिप में फ्लैट 30% टैक्स है, जितनी भी इनकम होगी आपको 30% टैक्स है। ये मैं आपको प्रोप्राइटरशिप की बता रहा था। अच्छा, हाँ, ये इंडिविजुअल का बता रहा था। अच्छा, तो अमन एक बार मुझे फिर से क्लियर करो कि एक पर्सन को, जैसे कि 2 लोग का काम है, तो उसको क्या करना चाहिए? आप हमारा और संकेत का एग्जांपल लेके चलो। तो हमें ये अपना, आपको क्या लगता है कि एक कंपनी मतलब एक पार्टनरशिप वाला कराना चाहिए या प्रोप्राइटरशिप कराना चाहिए? आप सजेशन दो। अकॉर्डिंग टू मी पार्टनरशिप बेस्ट रहेगी, क्योंकि 2 लोग हैं तो प्रोप्राइटरशिप तो एप्लीकेबल ही नहीं है आप पे। अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी। ये किसका गाना कंपनी में किसका आप चल रहा है? तब आई एम सॉरी, जाएंगे। हो रहा है नहीं, गाना नहीं चल रहा है, गाना विसल चल हो रहा रहा है। नहीं, विसल हो रहा है वो अमन, मेरे ख्याल से हेडफोन्स की वजह से। आई थिंक मेरे यहाँ से आ रही है, ये गली से आ रही है फिलहाल। अच्छा अच्छा, नहीं आई तो आप अनम्यूट का ऑप्शन है या वॉइस नहीं ओके चलो। हाँ आ रही अमन, है, अब नहीं आ रही। हाँ अमन आप बताओ, अब नहीं आ रही है। अमन आप बताओ। तो लाइक 2 ऑप्शन है आपके पास, आइदर पार्टनरशिप और आपका सेकंड हो गया कंपनी। कंपनी पे आप जैसे सर ने कहा कि ना ही जाए तो बेटर, बिकॉज की कंप्लाइंस बहुत होती है। और लाइक अगर आप बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, लाइक अगर आपको किसी का ट्रस्ट वाली बात होती है, लाइक किसी आपको इन्वेस्टर देखने हैं, तो इन्वेस्टर तभी आप ऊपर इन्वेस्ट करेगा आपकी प्रॉपर कंपनी होगी, रजिस्टर्ड होगी अंडर कंपनी लॉ। तो अगर आपका नॉर्मल काम चल रहा है, आपको कहीं भी कोई बड़े लेवल पे काम नहीं करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना है, तो बेस्ट ये है कि आप पार्टनरशिप में ही रजिस्टर करें। इसका जो फॉर्मेट होता है, प्रॉपर पार्टनरशिप डीड क्रिएट होगी आप दोनों के नाम से। उस डीड के बेसिस पे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड के बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, देन यू कैन कैरी ऑन। और उसके बाद 30% पैसा कटता बाकी जाएगा। प्रॉपर वे हो नहीं, हाँ, जितनी भी इनकम शो करेंगे उस डिपेंड शो करे ऐसा आपको एनुअली देना होगा। यार ऐसे अमन 30% फ्लैट फ्लैट, अमन 30% फ्लैट आप नहीं जाएगा। अगर मान लो आपका जो भी रेवेन्यू रिसीट्स आ रही हैं उस पर आप अपने कुछ एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। उसके बाद जो नेट प्रोसीड आपका प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर 30% जाएगा, आफ्टर डिडक्टिंग योर सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा,
वो किसको So- करना है, वो कैसे करके करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल के एक मुझे एक सिंपल तरीका बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरे साल में 6 लाख रुपए, मतलब एक जो कंपनी हुआ, मतलब ये जो भी हुआ पार्टनरशिप, तो अकाउंट में मेरे पास 6 लाख रुपए एक साल में आ गया, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख 7 लाख रुपए फॉर ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक ठीक है। है। अब 7 लाख रुपए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल आ गया है। अब मुझे इसमें मुझे अब क्या करना है? मेरा क्या सीधा पैसा बैंक से कट जाएगा? क्या करना पड़ेगा मुझे पहले बताओ। नहीं नहीं नहीं, आपका 7 लाख रुपीज आपके अकाउंट में आ गया। उसके हम्म। बाद आप एक सीए के पास जाओगे, अमन हाँ। गुप्ता के पास। हाँ। आप उनको बोलोगे कि मेरा ये बिजनेस है और इसमें मेरा जो नेट प्रोसीड है, वो ग्रॉस प्रोसीड है, वो 6 लाख रुपीज है। तो हाँ। ये आपका पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ये दिखाएंगे कि 6 लाख रुपए को कमाने के लिए आपने पैसे कितने दिए। इट मीन्स अच्छा। 4 लाख आपने रुपए अपना दिए। ऑफिस को, अपना नहीं, अगर मान लो आपने अपना ऑफिस खोल रखा है तो ऑफिस का रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपने कोई स्टाफ लगा रखा है तो स्टाफ का खर्चा, आपने जो बुक पीरियोडिकल्स लगा रखे, मतलब उस 6 लाख रुपए को कमाने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस करे हुए हैं ठीक वो है। आप क्लेम कर सकते हो। हाँ। उसके बाद आप जो है और अपनी सैलरी भी क्लेम कर सकते हो। और आपने ऐसे जो भी इंश्योरेंस इसमें, भी होते हैं ओके, ना, गुड ऐसे गुड इंश्योरेंस भी गुड, होते हैं ना दिस जो इज अ लूप होल गुड होते हैं। पार्ट। यार इंश्योरेंस जो है, अगर आपने अपना पर्सनल ले रखा है तो वो डिडक्टिबल नहीं होगा। अगर आपने इंश्योरेंस किसी ऐसी नहीं, चीज का अगर ले हमने रखा है हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखा है तो हाँ। तो फिर वो हमको इंश्योरेंस मिल भी जाएगा, मिलेगा, और जो मिलेगा। टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ेगा, राइट? वो अच्छा। उतने पोर्शन पे नहीं पे करना होगा। लेट सपोज अगर 6 लाख कमाया है और आपके सारे खर्चे 4 लाख रुपीज के हैं, तो हाँ। 6 तो लाख 2 माइनस लाख 4 पे, लाख 2 लाख, 2 2 लाख लाख पे का 30% टैक्स 30%। लगेगा। अच्छा, हाँ, तब 60,000 आपका टैक्स जाएगा। 60,000 रुपए नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई कोई प्रधानमंत्री इंश्योरेंस जो राहत होते फंड हैं में ना चला जाएगा। हाँ, जैसे अगर आपने कभी लोन लेके रखा है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आपने कोई मतलब उस इंपॉर्टेंट चीज में, पर्टिकुलर जैसे हाउसिंग अमाउंट लोन है पे तो आपको नहीं जितना, देना जैसे पड़ता। यार ईएमआई जितना यार जाएगा लोन ना पर वो कट जाता है, वो आई नहीं कट गेस। जाता है। हाँ। ईएमआई का इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है। अगर अच्छा। आपने लाख रुपए दिए और आप रीपे उसको 1,20,000 कर रहे हो तो 20,000 रुपए में टैक्स आपका नहीं जाएगा। ओके। ओके, ऑलराइट। सो कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। अच्छा, फिर अमन गुप्ता जब मैं सीए के पास चला गया तो उस सीए ने तो वो मेरा पहले आपसे फीस की बात करेंगे। हाँ, आप उनको ओके, फिर मैं कहूंगा अरे जिस तुम तो हिसाब मेरा दोस्त है। तो वो कहेंगे ऑफिस के बाहर सारी दोस्ती आ रही है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद टू या बी ऑन सीरियस नोट कि जैसे हम लोग इस पे आ गए तो डिडक्ट माइनस वाली चीजें माइनस कर दी कि हमारा इतने इतने रुपए 4 लाख रुपए हो गए, तो हम लोग को 2 लाख रुपए पे हम लोग को देना। अच्छा, इज देयर एनी वे कि हम किसी पे भी ना दें, एक भी रुपए पे हम लोग लूप ना होल, दें? लूप होल। लूप होल। हाँ, आप नहीं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाँ। आपकी स्क्रूटनी हो गई इनकम टैक्स हाँ। डिपार्टमेंट से, हाँ। तो आपको उनको ये कौन प्रूव सा? करना पड़ेगा कि ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कोई जना 2 रुपए का बेनिफिट लेने के लिए 10 रुपए का डोनेशन नहीं देगा। ये हाँ, आप भी नहीं मानते हो। अगर उसको डोनेशन देना हो तो वो 8 ही रुपए का देगा। obviously। बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टैक्स को मतलब जो 80 Dodge में करने डोनेट के करती है, जेन्युइनली डोनेट करती हैं, तो वो Okay. उनको बेनिफिट मिलता है। ओके ओके तो ओके। इस तरह Being की human। भी कुछ डिडक्शन है। अच्छा, तो आज हम लोग का जो भी डिस्कशन हुआ, तो संगीत कोई और भी क्वेश्चन है जो हम लोग का रह गया है ग्रुप का? फिर वो करने के बाद एक बार हम लोग सम अप कर देते हैं कि क्या क्या चीजें आज हम लोगों ने सीखी हैं और उसमें हम लोग क्या क्या किस मैनर में बेनिफिट उठा सकते हैं। यार अमन, नहीं, I आई think वांट टू हाँ। से वन अमन हाँ। आई वांट हाँ। टू से वन थिंग। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग। ये जो 80G वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, प्लीज डोंट अपलोड इट ऑन द इंटरनेट बिकॉज अब कौन, मैंने तो सही बोला है, कौन उस चीज को किस तरीके से लेता है तो वो गलत हो very जाएगा। सही तो है, सही आप उस चीज को कट कर देना, ठीक है ना? बाकी है। चीजें वो लेकिन बाद में हम लोग बात करते हैं। चल, कोई इशू नहीं है। या सो बेसिकली आई थिंक कि हमने काफी सारी चीजें कवर की है, काफी सारी वैल्यू हमने ऐड करने की कोशिश की, स्पेशली हमारे गेस्ट लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स क्लियर किए और प्रीटी मच हमने ये सारी चीज की है। ऑल इन ऑल हमको एक ही चीज समझ में आता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, हाउ टू मेक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आपको इस जमाने में अपनी लाइफ को कंफर्टेबल रखना है, अपने सारे ऐश और आराम के साथ अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो यू नीड टू नो कि how to manage your money, and not only that, if you want to help someone, if you want to make a difference in the world,
you need to have money, right? क्योंकि अगर Sir- आप ठीक तरह से आप satisfied हो, आपके पास power है, money means option, जितने आपके पास money हो हेलो आवाज आ रहा है? या हाँ सजल, तुम्हारा क्लोजिंग रिमार्क, व्हाट डू यू वांट टू से? My closing in a nutshell, I want to say that financial management basically depends on the two things, like to preserve the fund and to maximize the wealth. ठीक है कि हमारा जिस अकॉर्डिंग हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम अपना इन्वेस्ट पे रिटर्न क्यों चाहते हैं कि आज का जो 100 रुपए है वो 2 साल के बाद 100 रुपए नहीं रह जाएगा, वो 80 रुपए रह जाएगा। तो मेरे को वो 100 रुपए ऐसे इस जगह लगाने हैं कि वो उस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़े मेरा। अगर आज मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो वो 2 साल के बाद वो 100 ही रुपए रहे, ऐसा ना हो कि वो डेप्रिशिएट हो जाए, बिकॉज टाइम जो है वो मनी को डेप्रिशिएट करता है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन सच अ थिंग टू चेक द रिस्क ऑल्सो, कि हमें रिस्क कहाँ, रिस्क भी चेक करना है, उसका रिटर्न भी चेक करना है, हमें हर चीज को मेजर करके ही अपना फंड इन्वेस्ट करना है। और एक चीज और, नेवर इन्वेस्ट ऑल द अमाउंट इन वन सिक्योरिटी, you have to invest in multiple securities so that in case of any default other amount can be saved. Okay, perfect. So अभी मैं थोड़ा लास्ट में एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके एक रखना चाहता हूँ। पहली बात तो जो एक बताया है कि घर खरीदने वाली बात, तो EMI अगर आपको करनी है तो वो मतलब इफ यू ऑलरेडी हैव अ होम तब आप ना करें, अगर आपके पास नहीं है घर तो दैट इज नेसेसिटी, क्योंकि वो चीज तो जरूरी है ही है। ऐसे भी आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि जैसे माइग्रेट हो गए इतने सारे लोग, दे वर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी बट देयर शुड बी ए होम, इसीलिए कहा था होम की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो होम आपका होना चाहिए, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 2-2 3-3 घर खरीद के रखें। एक घर तो होना ही चाहिए, एक घर होना चाहिए, 100 घर खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और उसके बाद जो हम लोगों ने बजटिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें आई वांट टू से समथिंग जो हम लोगों ने पूरा प्रॉपर्ली एंड नहीं कर पाए उस चीज का, जो हम लोग किसी भी एक जो 1 लाख रुपए के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि जैसे 30% हम लोगों ने सेविंग करनी है, 20% आपका जो EMI पे खर्च, EMI आपका इंक्लूड, आई वुड से कि इंक्लूड करके अगर आपको कार लेनी है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप इफ यू कांट अफोर्ड, अदरवाइज इफ यू वांट टू गेट ए कार तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव वाले सेगमेंट पे ना जाएं, आपकी EMI छोटी से छोटी रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेप्रिशिएटिंग चीज है। कार अगर आप लेते हो इवेंचुअली उसका प्राइस कम हो रहा है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपका कि ग्रोथ होगी उस चीज पे। तो कोशिश करें वो चीज अपना थोड़ा कि शो ऑफ वाली चीज को थोड़ा साइड करके रखें, मनी को अच्छे तरीके से मैनेज करें, बिकॉज शो ऑफ थोड़े दिन चलता है, बाकी सारी चीजें जब आपका पैसा आपके पास होता है तो आपको शो ऑफ करने की जनरली जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो वाली चीज को अगर हम लोग डिवाइड करें 30,000 और 20,000 ऑफ EMI, अब आपका जो 50,000 बचा है, अब इसमें मेरा एक और चीज मानना है कि ये जो 50,000 है, अब इसमें जैसे आपका 15,000 रुपए आपका खाने का खर्च हो जाएगा, 15,000 रुपए कुछ रहने का खर्च हो जाएगा, तो आई वुड स्टिल से अपना जो 20,000 अपने ऊपर लगाएं। अपने ऊपर किस मैनर में आप लगाओगे, अपनी नॉलेज में लगाओ, अपने स्किल में लगाओ, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर वैल्यू इन एन ओवरऑल मैनर, अगर आप अपनी को वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप 1 लाख आज कमाना चाहते हो, आप अलग मैनर में आप और चीज कमा सकते हो, आप थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्टिन्यूसली लगाते जाओ, वो कोई पैसा वेस्टेज नहीं है। इफ यू वांट टू लर्न अ न्यू स्किल, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इन्वेस्टमेंट एनी काइंड ऑफ स्किल, अगर आपको कोई और चीज भी सीखनी है आप सीखिए, which can pay you later on, और आप अपनी पर्सनैलिटी आप इंप्रूव करते हैं। even if you want to learn communication skill, even if you want to learn anything like that, आप सीखिए, फिर वो चीज आपको लॉन्ग रन पे आपके मेन बिजनेस पे, आपके मेन जॉब पे भी आपको बेनिफिट देती है, और ओवरऑल आप बहुत बेटर पर्सन बन जाते हो। ओवरऑल आप अपने आप को आपकी अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लेते हो, विच इज वेरी नेसेसरी। तो मेरी राय में अगर बजटिंग किसी भी पर्सन को करनी है तो उसमें 10,000 या 20,000 महीने का, जो लाख रुपए कमाता है, वो 10,000 20,000 तो मिनिमम अपने ऊपर लगाने के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, विच में इंक्लूड आपकी इस टाइप की कोई कोचिंग हो सकती है,
अपनी कम्युनिकेशन हॉबीज के ऊपर खर्च कर सकते हैं। सॉरी, मैं कह रहा अपनी हॉबीज को अपने आप को पॉलिश करने हाँ, के लिए पॉलिश खर्चा करने होना के चाहिए। लिए, पॉलिश Absolutely. करने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत अलग मैनर में आपको फायदा हो सकता है। यू कैन रीड न्यू बुक्स, यू कैन ज्वाइन एनी मेडिटेशन काइंड ऑफ क्लासेस, यू कैन ज्वाइन एनी काइंड ऑफ थिंग। आपके अगर माइंड भी आपका शांत रहता है तो आप अपने काम में अच्छा फोकस कर सकते हैं। तो आज के हमारा जो भी पॉडकास्ट है उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी। अगर अमन गुप्ता और आ जाता उसका भी हम लोग क्लोजिंग रिमार्क ले लेते। सो ओके देन, एक हम लोग इसके बाद आई वांट ए पॉडकास्ट लेटर ऑन जो हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पे करना चाहते हैं। तो व्हाट आर योर टेक ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम सजल? Financial freedom, like to get free from the finance. या तो Like we stop earning and we get the return on the investment which we have made during the working time. मतलब we take retirement before the age. तो इस This is चीज what पे we हम want to लोग say. नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और आज के लिए हम लोग पॉडकास्ट को अपना क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। लाइक अभी सारे लोग ज्यादातर जा चुके हैं, आई डोंट नो, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। थैंक यू सजल फॉर ज्वाइनिंग अस। Okay. Thank you, Thank you Thank you, everyone Sanket. for being part of this, and it has been an amazing experience with you all, and it was Yeah. fun as always. Same here. Aman is here. Same Aman is here. here. Aman, your closing remark is remaining. आप अपना closing remark दे please. Aman. एक्चुअली करंट सिनेरियो में मैं बस यही सजेस्ट करूंगा फाइनली, राइट नाउ यू शुड इन्वेस्ट इन एफडीआरस ओनली. देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो लाइक एफडीआरस एंड पीपीएफ अकाउंट. You can open a PPF account. Person who are like businessmen, they don't have any plans for their future at the time of retirement, because salary employees जो होते हैं उनका PF proper कटता है. But for businessmen there is no retirement benefit, like there is no retirement investment, so they should invest in the PPF, which is the good option for the businessmen. Like sorry, not PPF. PPF is for salaried employees and PF account is for the like businessmen. So I and like जैसे आज का हमारा टॉपिक था शेयर मार्केट. So right now this is not the right time for the person जिनको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की to invest in the share market. It's better to go for the mutual funds, because mutual funds जो होते हैं यहाँ पर काफी लोग होते हैं जो उसको जो those who are taking care of those mutual funds कि उन्हें किस कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है. They are the knowledgeable person of that particular field. So go through a mutual fund rather than directly invested in the share market. और जैसे मैंने आपने कहा था कि ये शेयर मार्केट क्या है कि एक लालच हो जाता है. ये लालच नहीं है, ये जस्ट आई वुड से ये एडिक्शन हो जाएगा. अगर आप कभी इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको अर्निंग ज्यादा करेंगे तो आपको लगेगा मैं क्यों ना और इन्वेस्ट करूं एंड मेरे को और ज्यादा अर्निंग मिलेगी. और अगर आपको लॉस होता है तो आप कहते हैं कि उसको रिकवर करा जाए, तो आप उसमें और फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं. दिस इज अ ट्रैप एक्चुअली. So I would suggest कि directly invest ना करें शेयर मार्केट में. It's nothing than a trap. Directly invest ना. Yeah. सजल आप उस ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हैं, आई गेस. It's a human tendency, yeah. Yeah, like because अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी बेनिफिट दिखता है, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे बाहर रिटर्न है 5%, 6%. बट राइट नाउ अगर आप प्रॉपर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको नॉलेज अच्छी है, definitely in a long term you will gain more than 10%, 20% you will get the return, which is more than 10%, 15% even. So देखिए इन्वेस्टमेंट का मेन ये होता है आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, पेशेंस रखें और कमिटेड रहें. ये नहीं है कि आज आपने एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, कल आपको लगा इसके प्राइस गिर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा हाइक हो रहे हैं तो आपने स्विच कर लिया. You have to commit to a particular share and patience is must. And investment should be for long term, not for short term in share market. ठीक है. So पेशेंस और रिव्यूइंग टाइम टू टाइम, these both the things are important. कहीं ऐसा ना हो कि हम पेशेंस के चक्कर में उसको रिव्यू ना करें, आंखें बंद करके ना बैठ जैसे हाँ ऐसा जैसे यस बैंक था कि 600 से हाँ, तो दोनों चीजें देखना, हमें मॉनिटर भी करना है पेशेंस के साथ. ओके. सो अभी हम लोग अपना पॉडकास्ट को फाइनल पॉइंट पे लेके आ चुके हैं कि अमन ने बहुत सारी चीजें समराइज कर दी कि क्या क्या चीजें हमने करनी चाहिए. मैं भी ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ. Thank you, Aman. Thank you, Sajal, for joining us. And we'll be back with a new episode. Take care. Have a good night. Bye-bye. Okay. Good night. Thank you. Good night. Bye. Thank you, Aman and Sanket. Thank you so much.
Okay, Thank bye. you. Thank you.